Good evening. Good evening, Vineet, Abhishek, Ratan, Ayush, Ratnam, Ricky, Mayank, Good evening, and sir. yeah, good evening. Good evening, Ajay. Good evening, sir. Yeah. So, Ajay, are we should we start or more students are going to join? We can start, sir. Acha, we can start. Because I see today participants are like, I think 3-4 more have to join compared to yesterday. Yes, sir. Yeah, but we will start. Basically, similar to yesterday, we will start with a recap. But today I will have a shorter recap because from today we are going to move to very interesting section of our presentations. More interesting. Every day it is interesting, but interesting things are going to increase a lot as of now. So till yesterday we came to the point understanding that human life is very special, and it is meant to know about various questions, to know about especially those two questions, important question: why I am suffering and what is the goal of my life. And yesterday we came to the understanding that we are suffering because as in a country, a citizen may be suffering. एक देश में कोई एक citizen है, उसके लिए प्रॉब्लम होती है जब वो अपने कंट्री के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, जब वो गवर्नमेंट के लॉज को ब्रेक करता है, तो देन ही इज पुट इनटू द जेल एंड ही गेट्स सफरिंग. So that is one thing which we discussed. So similarly, if we try to break the rules which have been made by the universal government, जो भगवान की या फिर मास्टरमाइंड की गवर्नमेंट है of this whole world, if we try to break those laws, then we get some not so good results, because हमने नेचर में देखा है, if persons commit bad things, so then they get bad results. As simple as that. जैसे कि आप देखेंगे simply that if some person is there, like not about some person, you can just see about the whole lot of people. If we are doing bad to the environment, like we are creating pollution, and in turn we are getting the bad results. तो pollution की वजह से अलग अलग disease जो हैं वो बढ़ रही हैं, lot of problems are coming. We are like various diseases like corona also come because of people doing wrong things. So that is very natural. So what are the correct things to be done, कि correct क्या चीजें हैं, हमें कैसे पता चले? So for that we come to the understanding that correct things can be understood from scriptures. Correct things can be understood from Bhagavad Gita and Vedas and other scriptures. और वो correct कैसे हैं, उसके लिए भी अभी तक हमने अच्छे से understand किया. Various proofs we took yesterday that Bhagavad Gita is very authentic. All these scriptures, they have various values जो हमने कल देखा था, especially how the distance of earth is mentioned in Bhagavad Puran that I was showing, and about in Hanuman Chalisa the distance between sun and earth is also being given in a very simple way, Yug Sahastra Yojan, like that. So from this understanding we came to understand that this world is made by God and he has made certain laws. So for us to make best use of this world, to live very nicely in this world and to know more about things, we need to know about scriptures, and scriptures are authentic. So आज हम उस point से start करेंगे that what is there in the scriptures. Scriptures जो हैं हमें क्या देती हैं. So today what we are going to know is about our real identity, about the other dimensions which exist in the creation, about something beyond this creation, so beyond our natural understanding. So that we are going to look into. So आज भी थोड़ा presentation is little bigger, so like I will try to complete it by 8 only, but let us see अगर 4-5 मिनट आगे पीछे होता है तो that we can see. Okay, so with this note that
हम जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, very very important teaching of scripture. So that we are going to start, and that is very very helpful. So yeah, here comes the presentation for today. I will start from here. So this is Science of Soul. Hope you are able to see the presentation. These will be the topics, main topics for today. Am I matter or am I spirit? Experience of the living body. Scientific proof for the existence of mental. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। So my voice was not coming because this background music was there in the first part of presentation. So यही हम सब देखने वाले हैं. So the first point is, am I matter or am I spirit? So आज हमारा जो main discussion रहेगा, the very basis of the discussion is this thing only. So we will try to understand it very very clearly, and I hope we can discuss it nicely. So the first thing which I am going to ask today is, I am going to ask you, all of you, this very very important question. Who are you? अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो what are the journal answers or what are the answers people generally give? Can someone give some answers? अगर आपसे ये कोई पूछते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, so what are your thoughts? सर आई थिंक Sir, we are human being. Okay, yeah, correct. We are Anything? creature of God. Okay, so all of you know some part of the answer only. आप सब लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं. Otherwise, normally अगर किसी से आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो normally I hear people saying that I am Ayush or I am Ratnam or I am Ajay, I am Tushar. We generally say like this, and sometimes we can say I am from this city, I am from that city, I am an Indian. So most of the times what we tell is this as our identity. But सर वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, किस तरीके से पूछा जा रहा है हु आर यू, उस तरीके से आंसर करेंगे ना सर. ओके, सो यहाँ पे तो मैं नॉर्मल विदाउट एनी सिचुएशन में पूछ रहा हूँ. सो दैट टाइम आल्सो आई एम जस्ट टेलिंग कि these are the normal answers which we give when we ask Yes, this sir. question, who are you? यस सर. But the important thing is, this is not our complete identity, because ये जो identity है हमारी, ये changeable identity है. If we, all of you might be knowing that if we say our identity as Ayush only or Ratan only or Tushar only, but these names get changed sometimes. Like आप especially मैंने तो देखा है 9th क्लास में बहुत सारे लोग अपना नाम चेंज करते हैं. तो पहले 9th से पहले कुछ और नाम था, उसके बाद नाम चेंज हो जाता है. या फिर many times also in between, अगर किसी को पसंद नहीं होता अपना नाम तो वो बाद में भी बदल देते हैं. एंड बचपन में तो बहुत सारे नाम होते हैं लोगों के, ऐसा. So these are changeable identities. Even also if someone says that I am an Indian, वो भी identity change हो जाती है. Even like someone goes to America, get a green card there, and he becomes a permanent resident of America, his identity got changed. From an Indian he became an American. So these are all changeable identities. Even someone says I am a male, that also these days people can change by doing some operations and all. So that also is kind of changeable. So all these are changeable identities. Even what to speak of job and all. So सर कैन आई many से things. समथिंग? Huh? सर कैन आई से समथिंग? Yeah, we can take some answers at the end, matlab, if you don't mind. ओके सर. ओके सर. Yeah, so generally these are very changeable identities, but there is something which is very permanent, which is something very eternal to all of us, which is very consistent and constant with all of us.
तो वो क्या चीज है वो हम आज देखने का कोशिश करेंगे, लाइक दैट. So yeah, this is one Dr. Harry Monson from the professor. He is a professor of anatomy from Illinois College of Medicine, and he is saying all this thing. So someone will read it quickly. जल्दी से पढ़ेंगे. पढ़िए आयुष. Yeah, go ahead. Most of the human body is water. In a 60-pound person, there are about 5 pounds of calcium, 1.5 pound of phosphate, about 9 ounces of potassium, 6 ounces each of sulfur and sodium, 1 ounce of magnesium, and less than an ounce each of iron, copper, and iodine. Yeah. So ये डॉक्टर हैरी मॉन्सन है. इन्होंने कंप्लीटली जो स्टडी करके ह्यूमन बॉडी का, इसी तरह से बाकी बॉडीज के बारे में भी निकाला जा सकता है. इन्होंने ह्यूमन बॉडी के बारे में जो भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो निकाले एग्जैक्ट अमाउंट में, अबाउट फॉर अ 60 पाउंड पर्सन, और बाकी के लिए वो इसी तरह से रेशो में कैलकुलेट किए जा सकते हैं. सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, इफ वी गिव ऑल दीज केमिकल कंपोनेंट्स टू एनी डॉक्टर, सो कैन he make a person into dead person into living person, or even he can make a living person. एक ह्यूमन बीइंग को बना सकते हैं, या फिर एक जो डेड ह्यूमन बीइंग है उसको लिविंग कर सकते हैं देख के कि कौन सा केमिकल कंपोनेंट कम हुआ है. ऐसा is it possible, or have you seen or heard, or do you think it is happening? No, sir. It is not possible. Yeah. So हम सब में से ये सब किसी ने ना तो सुना है ना देखा है. So what it determines is we are something other than these chemicals. We are not only these chemicals. हम सिर्फ केमिकल से नहीं बने हुए हैं. हमारी बॉडी या फिर हम जो हैं, हमारी आइडेंटिटी इज नॉट ओनली केमिकल्स. अगर हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल होते तो लाइक इन केमिकल कंपोनेंट्स की हेल्प से हमें बना दिया जा सकता था. दैट टाइम व्हेन this famous theory was coming that we are made up of only chemicals, that was around 1970s 60s. That time this whole research was going on and the theories were coming. So that time also the doctor, the person who was having the Nobel Prize for this theory that we are made up of chemicals, he was giving lecture in a college. So there one student asked, sir, if I give you all these chemicals, can you make a human being? Can you make a living person? So he said, that I cannot say, that I cannot do. So उसी टाइम पे वो उनको चैलेंज किया गया. That time also he said that I cannot do, I cannot say. So what it really means is we are not only made up of chemicals. अगर हम केमिकल के बने होते तो कोई भी व्यक्ति मृत है, especially when someone dies जस्ट नॉर्मल, अगर किसी का जैसे टूट फूट नहीं हुई है, जस्ट नॉर्मली ही डाई, सम पर्सन लिव्स हिज बॉडी, तो फिर तो नॉर्मली देखा जा सकता है कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, थोड़ा बहुत कुछ जो भी कम हुआ है किसी इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाए और मेक दैट पर्सन इनटू लिविंग अगेन, इफ वी आर ओनली केमिकल्स. बट दैट इज नॉट द ट्रू फैक्ट. वी आर नॉट द केमिकल्स, वी आर समथिंग मोर देन केमिकल्स. अगर हम सिर्फ केमिकल ही होते तो व्हाट इट कम्स टू बी, इन सब की वैल्यू सिर्फ 110 रुपए है. लाइक एट द टाइम व्हेन प्रेजेंटेशन वाज मेड 2 to 3 years बैक, सो दैट वाज 110. नाउ द कॉस्ट यू कैन टेक, अगर महंगाई हो गई है कोरोना की वजह से, केमिकल महंगे हो गए हैं, सो इट कैन बी 200 300 समथिंग लाइक दैट. बट इफ आई आस्क एनीवन कि डू वी फील दैट वी आर ओनली वर्थ 200 rupees, no one will agree, no one will agree. We are something very very special. We are not only these 200 rupees of chemicals. अगर केमिकल्स ही इतने वैल्यूएबल होते, अगर सिर्फ केमिकल ही इतने वैल्यूएबल होते, तो लेबोरेटरी में वेयर वी डू lot of experiment in chemistry laboratory, so there people would have been put behind the jail कि आप सब इतना केमिकल वेस्ट कर रहे हैं. केमिकल तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, they are like persons only, but chemicals are not treated like that कि लेबोरेटरी में आपने केमिकल खिंडा दिया, बिखेर दिया तो आपको जेल में ले जाएगा कोई. ऐसा नहीं होता है. Because we are not chemicals. Chemicals are something different from the living person. Life produces chemical. That is a very very important thing. Not chemicals produce life.
life comes from life only. Life does not come from chemicals. जो ऑरेंज का पेड़ है वहां से सिट्रिक एसिड आता है, ऐसा नहीं कि सिट्रिक एसिड से ऑरेंज बनता है. Similarly, you can see all of us as human beings, we produce various chemicals rather than chemical create us. So that is the whole concept we are trying to understand here. And another thing is that if, just to understand this point, that human beings or we living beings are very, very important, very, very valuable, I would just ask one simple question. Like just for understanding, let us assume that there was one friend of yours and you, both of you, like one friend of yours, किसी का भी कोई friend आप सोच लीजिए, वो ड्राइव कर रहा है इन अ मर्सिडीज बेंज कार, उसके पास मर्सिडीज बेंज है एकदम नया, 30 lakhs, more than 30-40 lakhs, and he is driving that car and suddenly he met with an accident. Unfortunately, we do not want किसी के साथ हो, but just for the sake of understanding, let us assume कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, your friend, and the car got hurt and your friend got hurt. So what would be your reaction? What would you do at that point? आप वहां पे just पहुंचे, आपने देखा कि ऐसा हुआ है, कि एक्सीडेंट हुआ है. So what would you do? Someone would like to answer? Yeah. हॉस्पिटल ले जाएंगे सर. हॉस्पिटल लेके जाएंगे हम, और कार के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं. Although car is like 30 lakh, 40 lakh at that point of time, we just forget. कार जहाँ पे है पड़े रहने दो. ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि कार को पहले लेके जाएगा कि नहीं पहले इसको गैराज में लेके जाते हैं क्योंकि ये ज्यादा वैल्यूएबल है. ह्यूमन बींग्स तो सिर्फ 200 रुपए के हैं, ऐसा सोच के कोई भी नहीं करता कि उसको वहां पे छोड़ देगा. Because human beings are very, very important, very, very special, because life is something very precious. Life cannot be bring about again. ऐसा नहीं है कि किसी भी मृत व्यक्ति को दोबारा से जीवित कर दिया जा सकता है ऐसे ही. So why this happens? अगर हम सिर्फ केमिकल के होते तो ऐसा नहीं होता. अगर हम सिर्फ केमिकल होके होते तो हमें तो बस थोड़ा सा वो केमिकल इंसर्ट करके दोबारा से हमें लिविंग बना दिया जा सकता था. But this is not the case. This is not the case. So that is the whole thing we are trying to understand, that we are not only chemicals. Chemicals are the constituent of this body, but apart from chemicals, we are something special. And what is that special thing, or what is our identity? That is called soul or Atma. So that is our real identity. So we will try to understand what is that, little more depth. So this is one another example, that she was one of the heroine and she committed suicide. So after committing suicide also, her body was there. So शरीर जो है वहीं पे है, उसमें अगर आप देखेंगे तो chemical composition same होगा, will be little difference, जो थोड़ा बहुत होगा, minute, delta x. But after she is dead, she is not having any feelings, no thinking, no desire, no movement in the body, no consciousness. So that is the change. When a person is living, अगर आप उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं, किसी के साथ थप्पड़ मार दिया, तो वो आपको दोबारा से आपके साथ या तो बताएंगे या कुछ भी करने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर पर्सन डेड है, उसके साथ कोई भी थप्पड़ मारे या कुछ भी बोले उसको, that will not be able to respond. So that is the difference. अगर केमिकल्स ही सिर्फ होते तो ऐसा सब नहीं होता. There is something more special, and that is soul. The difference between living and dead is soul. There is no difference between a person who has just committed suicide and a living. The only difference is the soul has left the body. जो आत्मा है उसने शरीर को छोड़ दिया है. We will try to see it more clearly, but just for this whole concept thing, we are a spirit soul, like that. हम आत्माएं हैं. The difference is that only the soul has left this body. So this is being told very nicely in Bhagavad Gita. So उसी श्लोका को हम देखेंगे. Like from there, I will try to show you. What is the number? 222. So that is the number of Bhagavad Gita shloka. So all of you can try to, someone can try to read this translation jaldi se. As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. Yeah. So ये जो है किसी ने शायद पहले भी सुना हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. So ये श्लोका बताया गया है कि जैसे like for me,
I am wearing this jacket, inside that jacket I am wearing shirt, then like another t-shirt is there. So similarly I am wearing all these clothes. So when clothes become old, what we do, हम उसको रख देते हैं and we wear the new clothes. Similarly for the soul, what it does is it accepts different bodies. अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा aged हो जाते हैं, when one person is old, then his body is not working very well. So that time soul has to take another body which is working, which is new. So जैसे हम पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं और नए कपड़े को ग्रहण करते हैं, so similarly the soul leaves the old bodies or the body or the machine which is not working well, which is useless, which has become useless, and it accepts new machine or new body. And another shloka which tells about, जो अभी यहाँ पे दिखाया गया था, so that is about the nature of soul, that for the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. तो आत्मा के बारे में ये एक चीज और बताई गई है कि हमेशा से एग्जिस्ट करती है, उसके लिए कोई भी डेथ नहीं होती है. सो जैसे हम इस शरीर को छोड़ते हैं, आफ्टर डेथ व्हाट हैपेंस इज ओनली द सोल लीव्स दिस बॉडी. जो ये शरीर है उसको छोड़ देती है एंड इट गेट्स इनटू अनदर बॉडी, इट गेट्स अनदर बॉडी. सो ये शरीर छोड़ के हम दूसरे शरीर को एक्सेप्ट करते हैं. सो द ओनली बॉडी, द केमिकल्स रिमेन्स देयर, and these chemicals have been told in Bhagavad Gita also what these chemicals are. Chemicals means the main composition of the chemical, so that also is described in Bhagavad Gita. So soul का जो nature है बहुत amazing है. It does not grow into old. उस soul के लिए ये सब चीजें नहीं होती हैं, birth death. This is only for the body, because ऐसा बताया गया है भगवत गीता में, नात्वे हम जातु नाशम नात्वम जेने जनाधिपा. So this is the shloka which tells that कि जो soul है उसके लिए कोई existence नहीं है. It already existed, it always exists. After death also we accept another body. So यही यहाँ पर बताया गया है. He is unborn, eternal, ever existing and primeval. He is not slain when the body is slain. So ये 2.20 है. So भगवत गीता 2nd chapter 20th श्लोका, जो यहाँ पर उसका मीनिंग दिया गया है. जो सोल है, he is not slain when the body is slain. जब बॉडी का जो शरीर है वो उसका लॉस होता है, बट आत्मा के लिए कोई लॉस नहीं है. The soul takes another body. So हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इसमें आप ध्यान से देखिएगा फोटो में, यहाँ पे आपको एक स्पार्क दिखाई देगा, एक लाइट जैसा, तो वो मूव कर रहा है. So what it means is that this is another shloka of Bhagavad Gita, chapter 2, shloka number 13, which says that we keep on changing our bodies. जैसे अभी हम हैं, 10 साल पहले मैं जो है अलग दिखाई देता था, शरीर हमारा चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली. आप इसमें फोटो में भी देख सकते हैं कि शरीर जो है पहले छोटे बच्चे का बिल्कुल अलग होता है, बड़ा हमारा चेंज होता जाता है. एंड केमिकली एंड साइंटिफिकली ऑल्सो within 7 years, this is a fact, within 7 years all the cells in the body get replaced. अगर हम सिर्फ अपने आप को ये शरीर सोचें तो what should be the concept that after 7 years we are completely changed, because हमारी सभी cells change हो गई हैं, but we don't feel that we get changed. So what is that thing which makes us think कि हम बदले नहीं हैं? एक्चुअल में we are the soul, हम आत्मा है, वो बदलते नहीं है. हमारा एक्सटर्नल जो शरीर है that keeps on changing, the external body keeps on changing, but the soul remains same. And at the time of death also this soul remains same, it accepts new body, because अब शरीर जो है वो useless हो गया है, it is not no more functioning well. So अब उस शरीर में हम रह नहीं सकते हैं, we have to accept another body. So this is the important principle given in Bhagavad Gita, that from boyhood to child, like from boyhood to young age to old age, the body keeps on changing. जो शरीर है वो बदल रहा है. आप सब लोग भी इस बात को मानेंगे कि आप 10 साल पहले जो दिखाई देते थे, जो शरीर जैसा दिखाई देता था, वो कंप्लीटली अलग था, बट आप पर्सन तो सेम ही है. आप व्यक्ति तो ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले कोई और थे, अभी कोई और है. You are the same person, but the body is completely changed. So what remains the same? What remains same is soul, आत्मा, like that. So body and soul में यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि क्या डिफरेंस है. So body जो है, जो हमारा शरीर है, it is matter. Matter means अभी हम देखेंगे
मैं भगवत गीता से दिखाऊंगा अनदर श्लोका. मैटर मीन्स भूमिर आपो अनलवायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमते भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा. So it is being told in Bhagavad Gita, Krishna is telling to Arjuna that there are 8 things of which this body is made up of. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and ego. So these are the broad categories. So ये matter में आता है. But soul is something different, spirit. It is not in this, we cannot see with the eyes, direct eyes. The size of soul is also told. जो आत्मा का जो साइज है वो भी बताया गया है भगवत गीता में एंड इन अदर उपनिषद्स. सो दैट साइज इज 100 और 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर. जो हमारे बालों का एक अगर हम जो टिप है मतलब दैट पार्ट एज ऑफ द हेयर इफ वी टेक एंड वी मेक 1/10,000 पार्ट ऑफ दैट इज द साइज ऑफ सोल. ऐसा करके साइज बताया गया है. सो दैट इज नॉट पॉसिबल टू सी विद दीज आईज सोल. एंड बॉडी इज नॉट कॉन्शियस. सो जो हमारा शरीर है वो कॉन्शियस नहीं है. क्यों नहीं है, कैसे माने? तो जब डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद सोल जो है शरीर से लीव कर जाता है, तो उस बॉडी को आप कुछ भी करिए वो कुछ भी बिहेव नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा. तो बॉडी अपने आप में कॉन्शियस नहीं है. बट सोल इज कॉन्शियस. जब तक शरीर में आत्मा रहती है अ पर्सन इज कॉन्शियस. बॉडी चेंजेस. जो शरीर है वो चेंज हो रहा है, वो हम बात कर ही रहे थे. बट सोल डज नॉट चेंजेस. बॉडी इज टेम्परेरी. वन हु हैज टेकन बर्थ ही हैज टू डाई. बॉडी जो है वो ओल्ड होती है बट आत्मा जो है वो कभी भी ओल्ड नहीं होती है. इट कम्स, इट एक्सेप्ट दिस बॉडी एंड एट द एंड इट एक्सेप्ट अनदर बॉडी. अगर जब हमारा ये जीवन खत्म होता है, नेक्स्ट टाइम वी गेट अनदर नेक्स्ट लाइफ. एंड बॉडी इज डेड बट सोल इज अलाइव. हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन भगवत गीता के 18वें अध्याय. Can we take question at the end? मतलब हम end में लेंगे. You don't worry. You just write down the question because flow थोड़ा disturb हो जाएगा. Sorry for that, हाँ शिवम. I will take your question. Don't worry. ठीक है? Any problem? No sir. हाँ, yeah, we will take at the end. Don't worry. मैं सब क्वेश्चन लूंगा. So you are not the body that you see in the mirror. हम एक्चुअल में वो नहीं है जो हम सिर्फ शीशे में अपने आप को देखते हैं. हम वो नहीं है. बट हम इस शरीर में आत्मा जो है वो एग्जिस्ट कर रही है एज अ ड्राइवर ऑफ दिस बॉडी. अगर इस शरीर को एक मशीन के जैसा देखा जाए, एक कार के जैसा देखा जाए, तो जो हम हैं, आत्मा है, वो एक ड्राइवर है इस कार का. ये अभी आगे फोटो भी आएगा, उसको मैं अच्छे से मैं समझाऊंगा. तो ये यहाँ पे बताया गया है कि अगर लोग आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि हम तो सिर्फ केमिकल के बने हैं और मृत्यु के समय सब कुछ समाप्त हो जाता है. तो ये गलत बात है. ऐसा नहीं होता है. हम केमिकल के नहीं बने हैं. हम सिर्फ केमिकल नहीं है, जो हमने अच्छे से इलेबोरेटली अभी डिस्कस किया. हम केमिकल से भी एक्स्ट्रा कुछ हैं. वी आर समथिंग मोर देन केमिकल्स. तो ये करेक्ट व्यू है, स्पिरिचुअल व्यू, कि दैट वी आर स्पिरिट सोल, वी आर एनकेज्ड इन दिस बॉडी. हम इस शरीर के अंदर हैं आत्मा के रूप में, और हम दूसरा शरीर एक्सेप्ट करते हैं जब हमारा डेथ हो जाता है. तो ये एग्जांपल है. सो इसी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे एक कार के लिए ड्राइवर होता है, उसी तरह से जो हमारी बॉडी है, इस एग्जांपल को समझिए अच्छे से. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट लाइक फॉर द कार there is one driver required, so similarly for this body to move or to do any kind of action, soul is required. हम सब जो है, ये कार जो है, जो हम शरीर देख पा रहे हैं, this is like the car, this is like the, in Bhagavad Gita it is said as yantra rudhani maya. So it is called as a vehicle or machine, you can say. And we as spirit soul, हम आत्मा जो है इस शरीर को, इस कार को चला रहे हैं. तो जैसे कार के अंदर यहाँ पे दिखाया गया है कि कार के अंदर लाइट होती है, ऐसे ही हमारी आंखें दी गई हैं. कार के अंदर आवाज आती है तो हमारी भी है. कार के अंदर इंजन होता है तो हमारा हार्ट एक इंजन की तरह से वर्क करता है. और कार में टायर होते हैं मूवमेंट के लिए, हमारे पास पैर दिए गए हैं और हम उस कार को चला रहे हैं. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल. सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम्स हियर, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कार मूविंग? क्या चाहिए कि वो कार चलती रहे? What is required?
कि कार अच्छे से चलती रहे, how it will happen? Fuel. Yes. And something else? Driver. Engine. ड्राइवर। या ड्राइवर, तो हमने कहा ड्राइवर एंड फ्यूल, करेक्ट, वेरी करेक्ट, थैंक यू। सो जैसे कार को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे ही ड्राइवर को भी तो खाना चाहिए, ड्राइवर ऑल्सो नीड सम फूड। सो सिमिलरली फॉर दिस बॉडी, वट एवर फूड वी टेक, जो भी खाना हम खाते हैं वो इस शरीर के लिए है, इस मशीन के लिए है, बट फॉर सोल, जो आत्मा है, उसको भी कुछ खाना चाहिए, दैट सोल ऑल्सो नीड सम फूड। I hope it is clear. Soul also needs some food. जैसे एक कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर अगर खाना नहीं खाएगा तो he will die in some time. कार को तो पेट्रोल देते रहेंगे, लेकिन अगर ड्राइवर को कुछ नहीं मिलेगा तो ड्राइवर भी ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। So similarly हम जो है सिर्फ इस मशीन को खाना दे रहे हैं, जो हम खाना खाते हैं, the food we take, that is food for this machine. But what about soul, जो आत्मा है, जो हम रियल में हम हैं, उसके लिए तो हम कुछ खाना नहीं दे रहे हैं। उसके लिए खाना है क्या? पहली बात, उसके लिए खाना है यही जो हम यहाँ पर स्पिरिचुअल सेशंस कर रहे हैं। सो दैट इज द फूड फॉर सोल, दैट इज द फूड फॉर सोल, दिस स्पिरिचुअल सेशन, दिस भगवत गीता, दैट इज द रियल फूड फॉर सोल। एंड टुमारो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट सम इम्पोर्टेंट टेक्निक्स ऑल्सो, दैट इज फूड फॉर द सोल। तो हमारे लिए सोल को भी फूड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जस्ट एज द बर्ड इज ट्रैप्ड इन द केज, द सोल इज ट्रैप्ड इन द बॉडी मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, जो हमने बताया। अगर आप किसी एक उसकी बात करें, किसी एक पक्षी की बात करें, अगर उसको पिंजरे में रख दिया जाए, जैसे ये स्टोरी है दैट दिस ओल्ड लेडी, शी हैज पुट अ पैरट इनटू द केज एंड शी इज जस्ट पेंटिंग द केज। वो केज के बाहर काफी अच्छे से डेकोरेशन कर रही है, so she is doing all the things with the cage, लेकिन पैरट को कुछ खाने को नहीं दे रही है। so what will happen? Parrot will die. Similar example. So she is caring for the covering, the body, she is not giving food to the parrot. So similarly हम भी अगर सिर्फ इस एक्सटर्नल बॉडी के लिए ही सिर्फ और सिर्फ करते रहें, so that is not good. तो हमें सोल के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो सोल के लिए क्या करना है? रीडिंग scriptures like Bhagavad Gita, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, these sessions very important, so they are the real food for soul, like that. So ये तो पहली चीज हमने डिस्कस किया, I hope it was clear, but अगर कोई डाउट होगा तो हम अभी डिस्कस करेंगे एंड में। Then comes the second point, 6 changes of the living body, कि हमने एक डिफरेंस तो देख लिया कि हम सिर्फ केमिकल नहीं है, लेकिन इसको और थोरोली हम समझेंगे। There are 6 changes in the living body. जो भी लिविंग होता है उसके अंदर 6 चेंज दिखाई देते हैं, जो डेड होगा उसके अंदर ये चेंज आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे एक कोई आपका लैपटॉप है, वो डेड है और हम लिविंग हैं, तो ये डेड, ये जो चेंजेस हैं वो आपको लैपटॉप के अंदर दिखाई नहीं देंगे, आपको फोन के अंदर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आपको ये ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर ये दिखाई देंगे। So as this question was being asked one day before also, are we not the computers only, robots only? So इसी को हम और अच्छे से समझेंगे यहाँ पे, that this is a camera. So camera, or you can say some machine which has some programming done, एक sophisticated microcontroller है on which we have done lot of programming to decode various expressions and various things. We have done very sophisticated camera. And some persons are there, but अगर कोई इस ड्रामा को देख रहा है, like some drama is happening, some movie is happening, so कैमरा के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कैमरा is not able to experience anything. I'm sorry. But judges will be able to experience. I'm sorry. Camera will have no emotions. I don't know what else to do. Like he will Tell not me what to do. feel angry or happy, and camera will have no consciousness कि क्या हो रहा है, and camera will not be able to judge much. But the human beings, the judges, they will be able to give correct statement whether it was done or not. Camera can do only whatever is being programmed. जो भी इसमें programming की गई है, according to that only
the camera will be able to give some judgment that, oh, this was correct, this was not correct, if the programming is done. But if something is done out of the programming, whatever is not in the programming of the camera, agar some expression is beyond that, some expression is out of that, then camera will not be able to judge. But human beings, because they are different from camera, they can do that. So that is the difference between machine, even a sophisticated machine. I'm not talking about some old days machine, I'm talking about even the latest machine which can detect the faces and all. So that there is also a lot of difference. So here, this is one person who is asking one simple question ki, are we not also the machines? ऐसा करके यहाँ पे पूछ रहे हैं. So that the great devotee is telling that, one of the, so he is telling that कि आपकी जो ये machines हैं, cars जो हैं, ये ऐसा भी होता है क्या, like 2 cars can produce another car or 2 computers can produce another computer? So that does not happen because they are dead, they are not living. So that is the difference between dead and living. यहाँ पे और भी difference दिए गए हैं. So ये difference अभी हम देखते हैं. A living body undergoes 6 changes. अभी हम देखेंगे क्या 6 changes होते हैं. लेकिन जो matter है, जैसे आपका लैपटॉप है, वो सिर्फ dwindle करता है. Dwindle मतलब खराब होता है. जैसे ही आपने पहले दिन लैपटॉप लाया, that was new, but as the time progress, the laptop starts functioning bad and bad. The speed decreases and various virus comes. So all these things, phone जैसे लेते हैं पहले दिन, it is best, working best, but as the time increases, it is growing bad and bad. But for living being, it has 6 changes. ऐसा नहीं होता है कि पहले दिन से, when a child is born, it grows into old, then it becomes young, and then the dwindling age starts. So living में ऐसा होता है, dead में only the decrement happens. And in living beings, a male and female can produce another people, like all the parents, they have children. But ऐसा non living things में ऐसा नहीं होता है कि 2 कंप्यूटर से एक तीसरा कंप्यूटर आ जाता है, या फिर 2 लैपटॉप, 2 फोन से तीसरा फोन आ जाता है, ऐसा नहीं होता है. And living body has consciousness, thinking, willing and feeling. So these things are there only in living, but the matter has no consciousness. So what are the 6 changes? मैंने वैसे बता दिया है, but these are simple: birth, growth, maintenance, production of byproducts, dwindling, and then death. So these are the 6 changes. Some birth of some children happens, then it grows, थोड़े बड़े होते हैं, maintenance, then it comes to a young age, then production of byproducts, then some marriage happens, then children are born, and then person becomes old, 60-70 years, and then death happens. So this is the changes happening only in the living. जो भी living होंगे, ये animals में भी हैं, birds में भी ऐसा ही होता है, human beings में भी ऐसा ही होता है. जो भी living होते हैं, उनके लिए time duration अलग हो सकता है कि जो animal हैं वो 10 ही साल जी रहे हैं, or someone is living more years. But these 6 changes happens very necessarily in all the living beings. But for chemicals, but for machines, this does not happen. So now I am coming to very, very important concept. Like this is from Bhagavad Gita only, that I have explained, but to show you one point, this is from 7th chapter of Bhagavad Gita, verse number 4, I think 4 or 5, I think 4 is there. So Bhumir Apo, that I also recited. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego, all these constitute my separated material energies. So these are 6 things, 8 things basically, which are apart from soul. Soul के अलावा ये 8 चीजों से हम बने होते हैं. So let us see how we are made. हम कैसे बने होते हैं. So we are able to see this outer covering ना. जैसे मैं अभी बता रहा था कि मैंने like I have wore this jacket, inside shirt is there and another t-shirt is there, so 3 coverings are there. So similarly for soul, जो आत्मा है उसके लिए भी coverings हैं ऐसे ही. The external covering, that is this body. जो आत्मा है उसकी external covering क्या है? ये जो body हम देख पा रहे हैं, this body is the external covering of soul, and this body is made up of these things: earth, water, fire, air, ether, जो अभी हमने वहां पे भगवत गीता के श्लोका में देखा. And that is called the gross body. जो आप सब लोग हम देख पा रहे हैं या आप देख पा रहे हैं, that is the gross body, क्योंकि हम इन चीजों को ही देख सकते हैं. So inside this gross body there are 3
थिंग्स विच कंसिस्ट सटल बॉडी। तो सटल बॉडी को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वी अंडरस्टैंड दैट इट एग्जिस्ट। सटल बॉडी के क्या चीजें होती हैं? माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। जैसे इस जैकेट के अंदर शर्ट है, वैसे ही ग्रोस बॉडी के अंदर सटल बॉडी है। सो माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, जो ये तीन चीजें होती हैं इनसाइड द ग्रोस बॉडी। सो क्या होता है माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो? सो ऑल ऑफ यू नो, लाइक इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि और माइंड मीन्स मन। आप सब लोग इस तरह से जानते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस इनमें? अगर डिफरेंस समझने का कोशिश करें तो, सो माइंड इज समथिंग विच इज लाइक द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, और यू कैन से, एंड इंटेलिजेंस इज लाइक द सीपीयू। सो जो इंटेलिजेंस है वो सीपीयू के जैसा है, विच मेक्स द डिसीजन मेकिंग यूनिट, एंड माइंड इज लाइक द मेमोरी हाउस। जो भी आपके फोन में मेमोरी है, दैट इज लाइक माइंड ओनली। सो हमारे मन में क्या होता है कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। सो जस्ट फॉर एग्जांपल, व्हेन यू गो टू you have gone to some market, आप किसी मार्केट प्लेस में गए and you saw something, आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, आपको कुछ दिखाई दिया, लेकिन आपने फिर देखा कि you don't have money। सो मन तो कर रहा है खाने का, तो मन में प्रीवियस एक्सपीरियंस आया कि वहां पे सामने गुलाब जामुन रखा हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है, इसका टेस्ट आया, पिछली बार कब खाया था, वो सब मन में आने लगेगा, बिकॉज दैट इज स्टोर्ड इन योर मेमोरी। मेमोरी में सब स्टोर्ड है। बट फिर इंटेलिजेंस काम करेगा, जो सीपीयू है वो काम करेगा और बताएगा कि एक्चुअली आज मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो वो सब, ये इंटेलिजेंस का काम है, जो डिसीजन मेक करना है कि करना है या नहीं करना है। और मन का काम है मेमोरी, पुराना जो भी सब कुछ है वो मन में आता रहता है, लाइक मेमोरी। सो दीज आर द टू थिंग्स, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। सो एंड ईगो मीन्स आवर आइडेंटिटी। वी थिंक like whatever we think ourselves, like I am Tushar, or I am Abhishek, I am Ritik, I am Shivam, I am Ajay. So these are, ego means to connect with this body, matlab to understand that I am Tushar or I am this thing. So ये ego है। and inside this covering, जो ये मन और बुद्धि के और अहंकार के नीचे जो है वो सोल छिपा हुआ है, the soul is there। so इस तरह से तीन कवरिंग है, जैसे जैकेट के अंदर शर्ट और शर्ट के अंदर एक और टी शर्ट या जो भी आप समझे वैसे है। तो आत्मा जो है तीन लेयर्स के पीछे छुपा हुआ है। एंड द नेचर ऑफ सोल इज नॉलेज, इटर्निटी एंड ब्लिस। सो ये जो है आत्मा का नेचर है, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। सो ये हम कैसे माने आत्मा का नेचर है? ये बहुत ही सिंपल है। इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस, यू कैन accept it at this point of time that this is our nature। ये हम सब लोगों का स्वभाव है। all of us wants to be happy because this is the nature of soul। ये आत्मा का नेचर है to be happy, to be blissful। so that is why all of us, all the people in this world are looking for this bliss, all the people in this world are trying to get bliss। and आत्मा का नेचर है to be knowledgeful। so all of the people in this world are trying to get knowledge about this thing, that thing। और हम हर एक चीज के बारे में नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। and the third thing is eternity। eternity means to be always living। तो हम सब as this body we try that we never die। हम हर एक लोग ट्राई करते हैं कि मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा सब लोग कोशिश करते हैं, because that is the nature of soul। but this body, because we are in this body, ये सब फुलफिल नहीं हो पा रहा है, because body has death। so we are not able to fulfill the needs of soul। so that is the problem happening, that is the incompatibility happening। so ये अभी तक हमने समझा कि हम जो है शरीर से अलग कुछ हैं, and there is difference between living and dead। and हमने समझा कि कैसे सोल जो है कहाँ पे है, ग्रोस बॉडी और सटल बॉडी के अंदर सोल छिपा हुआ है। नाउ कि कैसे माने सोल एग्जिस्ट करता है, उसके थोड़े साइंटिफिक प्रूफ भी तो दिखाइए, ऐसा लोग सोचेंगे। सो दैट आल्सो वी विल ट्राई टू सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक प्रूफ्स, एंड वी विल सी। सो द फर्स्ट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या कहता है? जैसे भी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा बोलते हैं कि वो चले गए, वो चले गए। वो कहाँ पे चले गए? कौन चला गया? अगर आप सोचें तो कौन चला गया? अगर हम सोचें कि ये व्यक्ति जो है वो शरीर है, तो मृत्यु के बाद शरीर तो वहीं पे रहता है, लेकिन डेथ के बाद इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इवन द पीपल हु रियली लव दैट, वो भी उस मृत शरीर के साथ रहना पसंद नहीं करते।
This is a real story that one person, like one couple was there, they have done love marriage. So what happened is the boy died suddenly, that young person that died suddenly, वो like around 30 years उनका age था, that he died suddenly in the evening time, and the girl was alone with that dead body. So she was confused कि क्या करे, मतलब वो परेशान हो गई. अभी तक तो वो उनसे काफी प्रेम करते थे, उन दोनों का like they were having very good relationship, उनके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे, like that anything. But अभी वो dead body वहां पे पड़ा हुआ है, तो then she is not able to live with that dead body. उन्होंने अपने फादर को कॉल किया और बोला कि आप तुरंत आइए, मैं नहीं रह सकती इस शरीर के साथ. So after death what happens? शरीर तो वहीं पर है, but what happens is actually the soul has left. जो आत्मा है उसने शरीर को छोड़ दिया है. आत्मा ही असली चीज है जिसने शरीर को खूबसूरत बना के रखा हुआ है, जिसने शरीर में जान डाली हुई है. If the soul leaves the body, then body is no more useful. Body is completely useless. In our religion or in our culture, people burn the bodies after death. Even आपके कितने भी प्रिय व्यक्ति हों, लेकिन this is the culture, this is being done, that you burn the body after death. You cannot keep that dead body with yourself. But when the person was living, we were having connection with body. We never thought that this person is something more than the body. So this is the common sense कि हम सब लोग जानते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि वो चले गए, लेकिन वो तो शरीर तो वहीं पे है. तो important thing is actually जो चला गया वो आत्मा थी. And next thing is consciousness. जैसे हमने पहले भी ये बात किया, जो कैमरा है वो सिर्फ देखेगा अगर उसमें प्रोग्रामिंग भी की गई है कि ये रेड लाइट है, ये ब्लू लाइट है, आज मौसम अच्छा है, आज मौसम खराब है, बस इतना. लेकिन हम कुछ भी अगर पुरानी चीजों को कुछ भी देखते हैं तो हमारी मेमोरीज आती हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी में सब स्टोर्ड है. वी आर लिविंग बीइंग्स, कि हम पहले कैसे किया करते थे यहाँ पे. लाइक अगर हम किसी पुरानी जगह पे विजिट करते हैं तो पुरानी सब चीजें याद आ जाती हैं कि ओ हम तो तब यहाँ पे आए थे. तो बिकॉज वी हैव मेमोरी, वी हैव थिंकिंग, वी हैव फीलिंग, तो हम सब इमोशनल पर्सन्स हैं. वी हैव इमोशंस, वी आर नॉट इमोशनलेस. सो दिस इज द डिफरेंस. एंड नेक्स्ट थिंग, दिस इज वन very critical video. So this is one phenomena called near death experience. आप नाम लिख लीजिए so that you can search about it at your time, अगर आपको समय मिले, अगर आप चाहें. So or out of body experience. So this is a phenomena observed by various people. बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्च की गई, बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं. And what is the phenomena? Phenomena is that some people who are on the verge of death, जो मृत्यु के बहुत निकट हैं, तो उनको क्या फील हुआ कि वो अपने शरीर से बाहर गए हैं और वो अपने शरीर को देख रहे हैं. तो शरीर से बाहर कौन गया है? वो आत्मा गई है. सो ये एक वीडियो भी है, उसी वीडियो को भी हम देखते हैं. दिस इज वीडियो अबाउट अ गर्ल, अबाउट अ लेडी इन जर्मनी, एंड शी इज टेलिंग अबाउट हर एक्सपीरियंस कि उनको ऑपरेशन होते टाइम उनको क्या हुआ. उनका ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन उनको दिखाई दिया कि ऊपर से वो देख रही थी कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है. सो शी वाज आउट ऑफ द बॉडी. सो दिस इज द एक्सपीरियंस. यू कैन सी दैट वीडियो एंड वी विल गो अहेड. In Germany, Christina's doctors hope you are also able to see losing the their video, na? battle. Her heart will not restart. She has just minutes before her brain too shuts down. Es wurden Defibrillationsschocks. We were trying to jumpstart her heart with a defibrillator. Zum Schlagen zu bringen. This is from National Geographic only, the video. We gave her several drugs. Seite mehrere Medikamente. Der Patientin hatte zu viel Blut. The patient had lost too much blood. Her organs weren't getting enough. Wo kein Mensch und ich am wenigsten We really didn't think we could save her. erfolgreich sein können. Because Christina's heart has stopped pumping, many would consider her dead. Yet something seems to be happening with her mind. Das nächste, was ich wieder weiß, ist, ja, dass ich wohl unter der Decke... Next thing I know, I was hovering underneath the ceiling of the room. I could see down on myself laying on the operating table. And I saw the surgeons and heard them talking to each other. The scenario was pretty hectic. I realized that this was about life or death. To help understand near-death experiences,
Some researchers focus on the content of these episodes. A common element that occurs early in near-death experiences is what's called an out-of-body experience. At that time, the person seems to be able to see and hear things going on, but up from the vantage point above their body. So yeah, this is the near-death experience. So 11 to 14% of the average American population who are mentally and physically healthy, जो अच्छे खासे लोग हैं, ऐसा नहीं है पागल लोग की बात नहीं की जा रही कि वो लोग पागल हैं जिनको ये सब हो रहा है. They are physically and mentally healthy, they have such experiences, and this is published in medical journal, and various other research have been done. These are a lot of books, you can go and have a look if you want. And this is another phenomena, that is reincarnation. So reincarnation means punarjanma. So this might seem to be something funny in India, that people think that this is something myth or like that, but this is Dr. Ian Stephenson from University of Virginia, professor of psychiatry. So he has done extensive research on around 2000 cases. So 2000 ऐसे लोग जो कहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है या फिर मैं उनको याद आता है. So then he goes to them, does the research, does the verification, and he is able to find out various things that it is correct or not, like that. And there is a lot of books being written. And कैसे माने कि जो ये reincarnation है, ये उनसे क्या conclusion निकाला डॉक्टर आयन स्टीफेंसन ने? उन्होंने conclusion निकाला कि the phobias comes from past life. Whatever people have phobias, किसी लोगों को डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को like पानी से डर लगता है, किसी को चाकू से डर लगता है. So this is because how a person died in the last life. जिस चीज से अगर कोई ऊंचाई से गिरकर मरा है तो उसको इस लाइफ में ऊंचाई से डर लगेगा, ऐसा. This is very common phenomena seen like that. So, and another important thing is about twins. So I hope all of you might have seen twins. आप सब लोगों ने जुड़वा लोग देखे होंगे कभी ना कभी तो. So although if we see that chemically they are completely same, अगर हम देखें chemical composition wise they will be completely same, only few differences will be there in DNA and RNA structure to say about that, but as a person they might be completely different. आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, but दूसरे व्यक्ति एकदम completely opposite, he is very angry man, like that. So chemically तो they are same, but externally as a person they are completely different. And why? What is the reason? Because दोनों के शरीर में अलग अलग आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं. Both are individual persons having different souls. Externally they are having this body which looks to be similar, but internally they are two different persons because दो अलग अलग आत्माएं वहां पर एग्जिस्ट कर रही हैं. And to understand this very easily, if you say for example two cars are there, similar cars, दो Mercedes Benz black color की कार हैं, तो वो चल रही हैं सड़क पे, two persons are driving, so that cars will not be driving in the same way. दोनों कार एक जैसे चलेंगी नहीं, क्योंकि दो ड्राइवर अलग अलग व्यक्ति जो हैं उन कार को चला रहे हैं. तो कोई कैसे चलाना पसंद करता है, कोई कैसे, कोई स्पीड तेज रखेगा, ज्यादा रखेगा, किसी का हो सकता है कोई इधर उधर चले, कोई सीधा चले. So that can be different because the drivers are different. Even though car externally is same, but they are driving differently. So similarly, जो जुड़वा लोग होते हैं, externally the body is same, but internally because two different persons are there, two different souls are there, they have different behavior. एक गुस्से वाला व्यक्ति हो सकता है, एक शांत स्वभाव वाला हो सकता है, एक चिड़चिड़ा व्यक्ति हो सकता है, दूसरा वो बहुत ही फनी व्यक्ति हो. So that can be possible, and that is happening. So someone will read this, difference in temperament of twins proves soul. So ये Dr. Ian Stephenson ने अपनी रिसर्च के बाद निकाला है. So what he says, जल्दी से पढ़िए. अभिषेक सिंह आप पढ़ेंगे जल्दी से. Yeah, we don't have much time. जल्दी पढ़िए. Even thought identical twins are physically born by splitting of a single egg from the same genetic material. They may have striking contrast in temperament. The difference in temperaments is because of two different souls
reincarnated into different bodies that are genetically identical. हाँ, तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वही यहाँ पर ये बता रहे हैं आयन स्टीफनसन। तो ये बता रहे हैं कि जो जुड़वा लोग होते हैं, इनिशियली आफ्टर लाइक the cell was single and it split it into two, so genetically they are similar components, but temperament जो दोनों का व्यवहार हो सकता है दो व्यक्तियों का, वो बिल्कुल अलग हो सकता है क्योंकि दोनों शरीर में अलग अलग आत्माओं ने प्रवेश किया है। So this is one story again from history or like National Geographic Channel about a young boy from, this is a story from World War II। तो एक व्यक्ति थे, he was in America during World War II और वो फाइटर प्लेन में थे, उनकी डेथ हुई और उनका फिर से दोबारा से जन्म हुआ। तो जब वो 4-5 साल के बच्चे थे, he was knowing completely about a airplane, फाइटर प्लेन के बारे में क्या होता है, कैसे उड़ाते हैं उसको, सब कुछ उनको नॉलेज था like that, and it has happened in America, not in India, so we can see this video quickly। They have the same name and boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. The voice James is not M. coming. Leininger, a young boy from Ohio. Voice is not coming of this video? In the eyes. Yes sir, please। Okay, सर आ रही है सर? आ रही है? Yes sir। Okay। Yes sir, coming। Oh, fine। They have a young boy from the bayou. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can beat the Japanese easy as pie। तो ये छोटा सा बच्चा कह रहा है I can beat the Japanese, मतलब जापान से अमेरिका का वॉर हुआ था, तो छोटे से बच्चे के अंदर भी वही सब, अगले जन्म में भी वही सब चीजें उनको पहले से याद थी, that I am against Japanese and all। What caught my attention was James's extreme fascination with airplanes. And every night he slept with his G.I. Joe action figures, which he named. I took him to the Kavanaugh Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. The pilot put him on? I said, oh look, there's a bomb on the bottom. He said, that's not a bomb, that's a drop tank. Bouncing about। वो बता रहे हैं उनकी मदर और फादर उनको लेके गए फाइटर प्लेन्स दिखाने के लिए, तो she is telling that this is a bomb, look, so he is telling no, this is not bomb, this is this another part of the plane, so he is knowing all these things from childhood only। Out in the cockpit, James was flying high. That night, their world would change forever. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. It was a panic-stricken, terrorized screaming. Over and over again, James had the same terrible nightmare, 4 to 5 times a week. He was too young to explain the dream, but he could draw. Bombing ships, you see men parachuting. तो वो ड्राइंग बना के दिखा रहे Planes थे are dropping bombs. कि क्या उनके सपने में। He would just be crying. He'd say, airplane crash on fire, little man can't get out. He laid on his back and kicked up at the ceiling, and he goes, Mama, the little man's going like this. And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, ooh, airplane crash. Too, not exposed to in this life, but perhaps, just maybe, somebody else was. Decades earlier, James Houston grew up with the same insatiable fascination with airplanes. So, he फिर उनके फादर at ने age 21 रिसर्च was किया declared पूरा। missing and presumed So, dead. Where did he take off from a boat? Do you remember the name of your boat? उन्होंने अपने पिछली लाइफ में जिस बोट से उनके प्लेन ने टेक ऑफ किया था उसका नाम बताया नोटोमा। उनके फादर ने सर्च किया नोटोमा के नाम से, and then he was able to Found several thousand hits on the word Natoma. The USS Natoma Bay launched into battle, headed for Iwo Jima in the fight for Leyte Gulf. It's the biggest naval battle in the history of the world. Leo Pyatt served and on he the ship. met the person who in that time was there in the army। तो उन पर्सन को भी जाके वो मिले और फिर उन्होंने सब लोगों के नाम बताए वहां पे।
Oh yeah, I remember those people, and so he got very quiet. It was all real. The people and places James described actually तो ये बोल रहे existed. हैं people and name James described all really existed. जो भी नाम और लोगों के बारे में, जगहों के बारे में उन्होंने बताया जेम्स ने, वो एग्जिस्ट करते थे। उनके पिछली लाइफ में उनको उन सब लोगों का एक्सपीरियंस था। तो वो अपने पिछले बहन की जन्म की सिस्टर से भी मिले और उन्होंने उनको भी बताया। Recognized several pilots, even called them by name. You're Bob Greenwald. I'm serious. He never met Bob Greenwald. No, he'd never met him before. And someone else was invited. James Houston's sister, Anne. And he goes, it's not Anne, it's Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that. And I said, you did? Who was that? And he goes, Ruth. I mean, Ruth. Annie is what they called me when I was little, knowing my name and my sister's तो वो अपनी name. बहन से भी मिले। तो ये सब चीजें हुई हैं like that. So these are the various proofs, and these great scientists also, Socrates, Benjamin Franklin, John Adams, they also say about this. Socrates is telling that I am confident that there truly is such a thing as living again, and the living spring from the dead. So वो ऐसा बता रहे हैं। Franklin बोल रहे हैं finding myself to exist in the world, I believe I shall in some shape or other always exist. तो ऐसा करके बता रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस थे। दिस इज वन ऑफ द केस जो डॉक्टर एन स्टीफेंसन ने रिसर्च किया था इंडिया में, शुक्ला गुप्ता, और इसको महात्मा गांधी के टाइम का बातें हैं। सो ही आल्सो डिड अ रिसर्च, महात्मा गांधी भी इसमें इंटरफेयर किए थे, तो उन्होंने भी सिमिलरली अपने पिछले लाइफ के पेरेंट्स को वो सब रिकॉग्नाइज किया। सो दिस इज अनदर थिंग, एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रीइंकार्नेशन। ये अब बस हम लास्ट में खत्म करने वाले हैं 5 मिनट के अंदर सब चीजें। सो मैकेनिज्म ऑफ रीइंकार्नेशन की, रीइंकार्नेशन हमने देख तो लिया, साइंटिफिक प्रूफ्स देख लिए कि होता कैसे है। सो आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी ऑल कंक्लूसिव पिक्चर। सो इट इज a person is dying and then the person is coming again, and person is taking different births, sometimes as human, sometimes as another species, जो भी यहाँ पे आपको दिखाई गई है like that. So this is what happens. The soul leaves the gross body and is taken into another womb based on the quality of desire stored in the mind at the time of death. So ये भगवत गीता का श्लोका जो हमने पहले देखा था, जो पुराने कपड़े हैं उनको उतार के नए कपड़े पहनते हैं। सो इसी तरह से सोल नया शरीर एक्सेप्ट करता है। तो किस बेसिस पर नया शरीर प्राप्त होता है? सो देयर आर 2 फैक्टर्स। ये पहले श्लोका देखेंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। So this is told in Bhagavad Gita, whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. So basically, putting in simple language, putting in language which we can understand, these are the 2 factors. Desires in the mind, good and bad karma. So जो भी हमारे मन में विचार रहेंगे, इच्छाएं रहेंगी, and what is our karma, so उसके बेसिस पर हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। So this is something just like going to a shop. अगर हम किसी दुकान पे जा रहे हैं कुछ परचेज करने के लिए, तो वो बस उसके जैसा है। So good and bad karma represents the money in our hand. जितना भी हमारे पास मनी है, जितने पैसे हैं वो, and desires in the mind represent जो भी आप खरीदना चाहते हैं। Like you have only 5 rupees and you want to buy a biscuit. एक बिस्किट का पैकेट खरीदना चाहते हैं, तो 5 रुपए में सिर्फ लिमिटेड ही ऑप्शन है आपके पास। 5 रुपए में वो पार्ले जी वाला या फिर कोई सनफीस्ट वैसा छोटा बिस्किट आएगा। अगर आपके पास इच्छाएं तो हैं कि आप जो है like some other Oreo or other you want to purchase, but you don't have the money to buy that, तो then दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर मैथमेटिकल, तो इंटरसेक्शन से हम इजीली समझ सकते हैं। तो इंटरसेक्शन जो होगा वो हमें मिलेगा। हमारी इच्छाएं, जैसे हमारे पास तो 100 रुपए हैं, लेकिन इच्छा मेरी फिर भी पार्ले जी खाने की है, तो मुझे पार्ले जी ही मैं लेके आऊंगा। ऐसा नहीं कि 100 रुपए होने के बाद मैं, अगर इच्छा पार्ले जी की ही है। सो सिमिलरली वी माइट बी हैविंग अ गुड और बैड कर्मा। एवरीवन वुड, मतलब हम सब लोग सोच सकते हैं, डिजायर हो सकती है कि इस लाइफ में मैं बस डिजायर करता रहूंगा कि अगली लाइफ में मैं अनिल अंबानी के यहाँ पे जन्म लूं या फिर किसी बहुत रिच पर्सन के यहाँ पे जन्म लूं, लेकिन हमारा कर्मा नहीं है अच्छा।
वी हैव कर्मा नॉट टू बिकम अ ह्यूमन, हमारा कर्मा ऐसा ही नहीं है कि हम ह्यूमन का भी बर्थ ले सकें, तो ऐसा ही होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा, वी विल गेट सम अदर बर्थ. बट if we have a karma also but we don't desire also, we don't desire, so वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगा. So these two things are very very important. So इसीलिए हमारी लाइफ में हम क्या डिसीजंस लेते हैं, that is very very important. How we live our life, that creates this good and bad karma, that creates the desires. If someone is, so यही है सिंपल जो हमने लास्ट सेशन में भी देखा, that if someone is not obeying the God's law, then he will face with some bad results. Because सिंपल है, इस देश के भी नियम को अगर फॉलो नहीं करते तो कंट्री की भी पुलिस ऐसा छोड़ती नहीं है, वो भी जेल में डाल देते हैं, क्योंकि वो बाकी लोगों के लिए वही अच्छा है. क्योंकि अगर कोई कैदी सड़क पे घूमता रहे तो बाकी लोगों को भी नुकसान होगा, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है. तो ऐसे ही भगवान के भी रूल्स इतने मतलब सिंपल है कि अगर कोई दूसरे लोगों को कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है या फिर कोई जो भी इच्छा रख रहा है, मतलब अगर सिंपल है, मेरी इच्छा ये है कि मैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, अगर किसी की इच्छा है कि वो मीट खाना चाहता है बहुत ज्यादा, तो भगवान उसको एक शरीर देंगे, जैसे शेर का शरीर दे देंगे, बिकॉज वहां पे करना ये सब इजी हो जाएगा. शेर के शरीर में उसके लिए मीट खाना बहुत इजी है, बहुत वही उसको खाना है. तो भगवान जो है, जैसी भी हमारी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि भगवान इतने मर्सीफुल, इतने दयालु दयावान व्यक्ति हैं, तो हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए भगवान हमें उसके अकॉर्डिंग शरीर दे देते हैं. लाइक अगर किसी की मीट खाने की इच्छा है तो वो टाइगर का शरीर में अच्छे से खा पाएगा या शेर के शरीर में अच्छे से खा पाएगा. ह्यूमंस के शरीर में डिफिकल्टी होगी. ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस के लिए बहुत नेचुरल नहीं है मीट खाना, तो इसीलिए वो भगवान उनको शेर का शरीर दे देंगे. अगर कोई बहुत सोना चाहता है, जैसे हमने कल बात किया था, तो भगवान कहेंगे कि जिस शरीर में वो करना इजी है, आप वो शरीर ग्रहण कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन. तो सिंपल है कि अगर हम ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में, जो मनुष्य शरीर में, आप उस इंटेलिजेंस का यूज करेंगे जो हमें मिला है, ह्यूमंस एनिमल से एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस जो मिला है, उसको अगर हम यूज करेंगे वेदास को फॉलो करने के लिए, और जो करेक्ट चीजें बताई गई हैं उनको फॉलो करने के लिए, सो वी विल हैव गुड डेस्टिनेशन इन नेक्स्ट लाइफ, वी विल हैव गुड प्लेस. हम यहाँ से प्रमोट होंगे, प्रमोशन होगा. लेकिन अगर हम रूल्स को ब्रेक करेंगे, सो देन जो भी हमारी इच्छाएं होंगी उसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट बर्थ मिलेगा. एंड देयर आर 4 एक्टिविटीज विच आर नॉट वेरी हेल्पफुल, विच आर अगेंस्ट द लॉज ऑफ स्क्रिप्चर. जो स्क्रिप्चर कहते हैं कि ये अच्छी एक्टिविटीज नहीं है, तो उन 4 एक्टिविटीज से हमें दूर रहना चाहिए अगर हम लाइक वी वांट टू बी हैप्पी, अदरवाइज वी मे फेस बैड रिजल्ट्स. लाइक मीट ईटिंग है, अगर हम किसी को, दूसरे को कष्ट देते हैं, मीट ईटिंग से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो दैट भगवान को अच्छा नहीं लगता, वो दैट इज नॉट गुड. अगर हम इंटॉक्सिकेशन लाइक लेते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है. जो भी लोग इंटॉक्सिकेशन लेते हैं उन्हीं की हेल्थ इश्यूज आते हैं, लीवर प्रॉब्लम, कैंसर, सो मेनी थिंग्स हैपन. एंड गैम्बलिंग भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता. इंडिया में तो कोई करता नहीं है, बाहर के देश में ये बहुत कॉमन है, बट गैम्बलिंग से भी लोगों को लत लग जाती है. Even I was seeing on paper also, one day it was coming, there was some ad of some game, some gambling game जैसे उसमें, और उसमें नीचे लिखा था आपको इसकी लत लग सकती है तो कृपया ध्यान पूर्वक करें. मतलब some sentence was there, it was in the newspaper front page. So they also know this, that this is very harmful. आप उसके लिए लोग अपना सब कुछ गवा बैठते हैं इसमें, तो ये नुकसानदायक हो सकता है. And then there is about illicit relationship. तो अगर कोई हम रिलेशनशिप रखते हैं बिफोर मैरिज, आउटसाइड मैरिज, सो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी हेल्पफुल. हमारा समय व्यर्थ होता है एंड वी जस्ट कैन नॉट फोकस ऑन अवर गुड थिंग्स. हम स्टडीज भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं. सो ये सब चीजें हमारी लाइफ के लिए हेल्पफुल नहीं होती हैं. स्टडीज करने में भी अगर हमें कुछ सक्सेस अचीव करना है, सो दीज ऑल थिंग्स क्रिएट प्रॉब्लम इन अवर लाइफ. एंड ऑल्सो गॉड ऑल्सो डज नॉट लाइक दीज थिंग्स. सो यहाँ पर ये बताया गया है. सो ये सब खत्म हो गया. जस्ट लास्ट पॉइंट, वैसे तो समय हो गया है, बट लास्ट पॉइंट आई विल कन्वे कि इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा. जो हम साइंस, ये आत्मा के विषय में हमने जाना, तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा. बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो मैं बताना चाहूंगा वो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड. सो यू कैन सी दैट अगर भारत में या फिर एनी कंट्रीज में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं कि हम यूपी से हैं, हम दिल्ली से हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा होगा, हम इस स्टेट से हैं, हम
लाइक हम बिजनौर से हैं, हम मेरठ से हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ भी इस तरह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सम पीपल इन अदर कंट्रीज ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत झगड़ा होता है। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें, अगर जो आज हमने नॉलेज सीखी है अबाउट सोल, अगर ये हम अप्लाई करें तो एक्चुअली ऑल ऑफ अस आर सोल, इंटरनली ऑल ऑफ अस आर प्योर। हम सब प्योर हैं, हम सब आत्माएं हैं, सब सेम है एट दैट लेवल। बट बिकॉज वी आर हैविंग डिफरेंट बॉडीज, बिकॉज हमने अलग अलग जगह जन्म लिया है तो हमें अलग अलग शरीर मिला है, लेकिन इंटरनली ऑल ऑफ अस आर सोल। सो देयर इज नो रीजन दैट वी हैव हेट्रेड एंड एनवी टुवर्ड्स अदर पीपल। इसके लिए कोई रीजन नहीं बचता है। बट प्रैक्टिकली वी नीड टू टेक केयर। ऐसा नहीं कि कोई लोग हमारे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो हम भी कुछ भी करें, हम ध्यान से रहना चाहिए। बट एक्चुअली हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ऑल ऑफ अस आर सोल, इवन एनिमल्स ऑल्सो। अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू हार्म। जो है बहुत सारी कंट्रीज में लाइक पीपल व्हाट दे डू इज someone says that I very much like dogs। वो कोई लोग होते हैं कि हम डॉग प्रेमी हैं, कोई लोग बोलते हैं हम कैट प्रेमी हैं। लेकिन अगर हम इस स्पिरिचुअल नॉलेज को समझेंगे तो we will love all, we will love dogs also, we will love cats also, we will love cows also, we will love everyone because everyone is soul। सब लोग आत्माएं हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि सब लोग भगवान से जुड़े हुए हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो अगर कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं जानता है तो ही विल थिंक एवरीवन इज सेल्फिश इन दिस वर्ल्ड एंड आई विल शो अदर्स हु आई एम। मैं दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं भी उनको परेशान करूंगा। लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअल नॉलेज जानता है तो देन ही विल थिंक दैट ओके अदर पीपल आर नॉट बिहेविंग वेल विद मी बट आई विल डू समथिंग गुड, ताकि दूसरे लोगों को भी समझ में आए कि कैसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। इससे हम दूसरे लोगों को गलत एग्जाम्पल ना दिखा के खुद से एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहते हैं एंड वी विल ट्राई टू हेल्प पीपल। हम कुछ मेडिटेशन करेंगे और फिर अपने जो हमें, अगर कोई लोग होते हैं बहुत सारे डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चले जाते हैं दैट मेरा तो कुछ भी अच्छा नहीं है, पढ़ाई भी अच्छे नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करेंगे तो हम समझेंगे कि ऑल्दो आई मे हैव सम प्रॉब्लम्स, लेकिन मैं अच्छे से मेहनत करूंगा और मैं गाइडेंस लूंगा अपने सीनियर्स का, उनसे हेल्प लूंगा, अपने पेरेंट्स का हेल्प लूंगा और मैं अच्छे से जो मेरी पोटेंशियल है उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करूंगा। सो ही विल बी पॉजिटिव, ही विल नॉट हैव एनी टाइम नेगेटिव आउटलुक बिकॉज ही इज हैविंग स्पिरिचुअल नॉलेज। सो yeah, although this is there, so I will end session for now so we can ask any questions. So sorry for being a little late, 5-10 minutes late, although I tried to do it quite speedily in the end, but fir bhi because little extending is there. And tomorrow we are having very special session. Tomorrow हमने एक बीच में इंट्रोड्यूस किया है very special session, so that is very helpful, that is the practical application, वो हम कल सीखेंगे। and then 5th session जो परसों होने वाला है, that will cover the remaining questions, जो भी आपके कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचे होंगे आज के बाद 5th सेशन में जो परसों होगा वो सब कवर हो जाएंगे। और कल हम एक बहुत ही स्पेशल सेशन रखने वाले हैं, उसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज डू कम। वो हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रहेगा इस सब चीजों का। एंड थैंक यू वेरी मच एंड वी आर ओपन टू एनी क्वेश्चंस। शिवम ने शायद एक बार बीच में पूछना चाहा था, तो यू कैन आस्क नाउ एंड अदर पर्संस आल्सो इफ दे हैव एनी। सर भगवत गीता के 17वें और 18वें अध्याय में बताया गया था कि कृष्ण जी ने अर्जुन से जब उन्हें मतलब वो भय गए थे, मतलब भय लग रहा था उनको कि हम अपने लोगों को ही मार रहे हैं, तो उन्होंने पहले उन्हें अपना साधारण रूप दिखाया मनुष्य टाइप का, कृष्णा वाला, ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने अपने अवतार दिखाए। फिर उस थर्ड स्टेप में उन्होंने एक उनको मैजिकल आइज दी थी, जिससे उन्होंने अर्जुन को एक अलग रूप दिखाया था। तो सर मुझे ये स्टेप क्लियर नहीं हो रहे सर, वो लास्ट का जो रूप था वो सर क्या था? क्या वो सर वो हम अपने आइज से नहीं देख सकते सर? सर बोलते सब लोग कि मैजिकल आइज थे, पता नहीं सर, वही क्वेश्चन। ओके सो दिस कम्स अबाउट विराट रूप उसको बोलते हैं, एंड दैट कम्स इन 11th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, वेयर कृष्णा
सो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो आपने बताया उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे है, मतलब दैट इज करेक्ट ओनली बट लिटिल डिफरेंस इज देयर. सो कृष्णा शोड हिज विराट रूप व्हेन अर्जुन आस्क्ड. अर्जुन ने बोला कि मतलब द डिस्कशन वाज गोइंग ऑन, अर्जुन और उनमें ऐसा भगवान को वो दिखाना चाहते थे, मतलब कि हर लोग अपने आप को भगवान ना बोलने लगे, हर व्यक्ति अपने आप को ये ना बोलने लगे कि मैं भी भगवान हूँ. तो इसलिए अर्जुन ने ये क्वेश्चन स्पेशली पूछा कि मैं कैसे मानूं आप भगवान हैं, आप मुझे कुछ स्पेशल चीज दिखाइए. मतलब द कंटेक्स्ट वाज लाइक दिस कि बाकी लोग जो हैं, कोई भी हर एक व्यक्ति आके ये ना बोलने लगे कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा करके कोई भी व्यक्ति बोलने ना लगे. तो इसलिए अर्जुन ने ये क्वेश्चन पूछा कि आप कुछ स्पेशल चीज दिखाइए, मतलब इस तरह से कॉन्टेक्स्ट था. तो तब भगवान ने एक विराट रूप दिखाया, एंड दैट विराट रूप मीन्स the whole universe was there in that room. The whole universe was there. That means everything is coming from Krishna. It is first everything is coming from God only. जो हमने फर्स्ट सेशन में भी देखा था, that God is the creator of everything. So वही रूप उन्होंने दिखाया और उसके लिए उन्होंने बोला कि मैं आपको दिव्य चक्षु दे रहा हूं, ऐसा करके उन्होंने बताया. That is correct जो आप बता रहे हैं. और फिर और उसमें सभी लोग थे, मतलब उसमें क्या दिखाया स्पेशली उन्होंने कि जो सभी पांडव, जो दुर्योधन और दूसरी पार्टी के सब लोग हैं, वो मर रहे हैं. वो जो विराट पुरुष है वो उनको खा रहा है, ऐसे करके वो सब लोग मर रहे हैं. और भगवान ने उनको पूरा हिम्मत दिया कि मैंने उन सब लोगों को पहले ही मार दिया है, मतलब एज अ काल रूप में मैंने उन सब लोगों को मार दिया है. इसका मतलब वो सब लोगों की मृत्यु तो तय है. जस्ट यू बिकेम द इंस्ट्रूमेंट, you became the instrument and help in killing those. मैंने तो अदरवाइज मैं तो कैसे ना कैसे मार ही दूंगा, मुझे मारना है. जिनकी मृत्यु सबकी तय है तो वो तो that is possible, that is going to happen. तो ये सब उनको हिम्मत बढ़ाने के लिए ऐसा किया, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, ताकि हर कोई व्यक्ति ऐसा ना बोल सके कि मैं भगवान हूँ. तो आपसे कोई भी व्यक्ति बोले कि भगवान कौन है, जो विराट रूप दिखा सके वो भगवान है, और वो उन विराट रूप को देखने के लिए वो आइज भी दे सके. भगवान ने अर्जुन को दी, तो आपको भी कोई आइज दे और आप देख सकें और सब लोग उसको मान सकें, तो वो ही भगवान होंगे. ऐसा कोई ऐरा गहरा व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता. और फिर अर्जुन साइंटिफिकली क्या ये पॉसिबल है कि हम भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जिससे हम भी वो चीज देख सके जो थर्ड स्टेप में अर्जुन ने देखी थी? ये साइंटिफिक नहीं है, ये साइंटिफिकली नहीं हो सकता. साइंटिफिकली तो हम क्या है, जो अभी तो हमने कल बात किया था कि साइंटिफिकली तो जो हमारी विजिबल रेंज के बाहर है वो हम देख ही नहीं पा रहे. एक्सरेज हो रही है, हम कहाँ देख पा रहे हैं? गामा रेज कहाँ देख पा रहे हैं? साइंटिफिकली नहीं देख पा रहे गामा रेज को हम. कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या बना सके, कोई डिवाइस? That is not possible. All these things are beyond the control. Everything is not in our control. आप अभी तो so many things are there which are not being covered. So भगवान को हमें देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ऐसा बताया गया है कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि भगवान हमें देखने के लिए आए कि बेटा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है. ऐसा हमारा सोच होनी चाहिए, ना कि जबरदस्ती कि मैं भगवान को देखूंगा, पकड़ूंगा मैं भगवान को, कौन है कहाँ है. ऐसा नहीं होना चाहिए भाव हमारा. ऐसे भाव से हम कुछ नहीं कर पाएंगे. तभी तो वो भगवान है. अगर वो हमारे कंट्रोल में होते तो वो भगवान ही कैसे होते? फिर तो हम भगवान हैं. अगर वो हमसे छोटे हो गए, हम जब चाहे उनको पकड़ ले, देख लें, वो नहीं है. वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ये हमें समझना पड़ेगा. और एक पॉइंट और था सर, उसमें कहा गया था भगवान हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, हर एक प्राणी में, हर एक यस. कैसे पॉइंट है वो सर डिस्क्राइब कीजिए. हाँ, सो ये आपकी आगे के सेशंस में हम बहुत ही अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे that God, there are three forms. वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यद् ज्ञानम् अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते. So there are three ways in which God exists. That is Brahman, Paramatma and Bhagwan. So ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा, लेकिन just for understanding that God exists in the heart of all living beings. जो भगवान है, जैसे सब जो जीवित व्यक्ति हैं उनके शरीर में आत्मा एग्जिस्ट करती है, उसी तरह से आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी, भगवान अपने एक अवतार के रूप में, आप समझ सकते हैं, एक अवतार के रूप में एग्जिस्ट करते हैं सबके हृदय में, देखने के लिए कि ये आत्मा क्या कर रही है, लाइक दैट.
सो दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ गॉड इन फॉर्म ऑफ परमात्मा। तो वो भगवान का फुल रूप नहीं है कि भगवान वही है, भगवान सीमित नहीं है, भगवान इज नॉट लिमिटेड, कृष्ण गॉड इज नॉट लिमिटेड। जैसे हर जगह एयर एग्जिस्ट करती है, या फिर एयर की जगह अगर आप बोलें सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी हर जगह एग्जिस्ट करती है। सो सिमिलरली गॉड एग्जिस्ट everywhere in the form of his expansion, in the form of his expansion, not in his real form, not in his full form। जो उनका पूर्ण रूप है उसमें हर जगह exist नहीं करते हैं, but in form of his expansion he exists everywhere। because exist everywhere का एक दूसरा मीनिंग भी आप समझ सकते हैं। जैसे अगर बात करें कि एक कंपनी है, कोई कंपनी है, तो उस कंपनी का जो मालिक है उसी की मर्जी से सब कुछ उस कंपनी में चल रहा है। ऑल्दो वो हर चीज को देख नहीं रहा है, लेकिन उसने अपने अंदर जो लोग रखे हुए हैं उनको बोल दिया है ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो सब कुछ उसी की मर्जी से चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो हर जगह आके अपने आप पर्सनली चेक करता है। तो इसी तरह से भगवान की मर्जी से या भगवान ने हर एक चीज में अपने आप को फैलाया हुआ है, इसका मतलब वो हर जगह उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उन्होंने ही सब कुछ चीजों को डिसाइड किया है ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। तो इसलिए वो पर्सनली हर जगह उपस्थित रहे, वो उनके लिए कंपल्शन नहीं है, बट ही इज एग्जिस्टिंग इन हिज एक्सपेंशन फॉर्म लाइक दैट। ओके, थैंक यू। या थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चंस, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। थैंक यू शिवम, बहुत ही अच्छे आपने पूछे। आप इसी तरह से इंटेलिजेंटली सोचते रहिए तो बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा, एंड यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ गेन, लॉट ऑफ बेनिफिट। सर आपने सोल का साइज बताया था, मैं सुन नहीं पाया सर, एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ सर आपने सोल का साइज बताया था, वो मैं सुन नहीं पाया था। सोल का साइज इज 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ हेयर। जो हमारे बाल का जो एक किनारा है, कोना है, उसके 10,000 हिस्से कर दिए जाएं, 1/10,000 इनटू टिप ऑफ द हेयर, वो सोल का साइज है। मैं अभी आपको श्लोका भी दिखाने का कोशिश करूंगा, जस्ट वेट। तब तक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे को अगर वो मिलता है तो, नहीं तो मैं कल दे दूंगा। गुड इवनिंग सर, दिस इज रिकी। यस, हेलो रिकी। यस सर। सर जैसे आपने सर बताया कि जैसे कि हम सर बर्थ लेते हैं फिर डेथ होती है, तो कन्वर्जन हो रहा है सर आत्मा का, सर सोल का। तो सर ये प्रोसेस सर सोल ये का कांस्टेंट कन्वर्जन हो प्रोसेस रहा लग है, रहा है। सोल जो है वो शरीर चेंज कर रहा है। ओके सर, तो सर मतलब इसमें तो सर मतलब बार बार तो सर ये मतलब कांस्टेंट सर प्रोसेस चला ही जा रहा है, तो सर इसमें तो सर सफरिंग भी है। हाँ हाँ, क्योंकि सर हम बार बार सर पैदा हो रहे हैं फिर जन्म ले रहे हैं, तो सर ये कब तक यस सर यस, प्रोसेस चलेगा? तो सर ये रुक भी नहीं हाँ तो सकता सर। हाँ, इसी प्रोसेस को रोकने के लिए हमारा 5th सेशन है कि इस प्रोसेस को कैसे रोकना है, यही तो हमें सीखना है। ओके सर, ओके, मतलब इन 5th सेशन सर वी नो। हाँ, यही है गोल ऑफ लाइफ, जो हम कल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? द गोल ऑफ लाइफ इज टू स्टॉप दिस सफरिंग, द गोल ऑफ लाइफ इज यस टू सर, स्टॉप क्योंकि हम दिस। लोग सर चेंजिंग होते जा रहे हैं बार बार। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है वो हमें सीखना है। दैट इज देयर। ओके सर, ओके सर। बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी स्मार्ट रिकी, वेरी नाइस क्वेश्चन। थैंक यू सर। सर या वन मोर यस यस, हाँ बोलिए सर। अभिषेक। सर जैसे आपने शुरू में सेशन में बताया कि सर के सोल कांस्टेंट होती है सर, उस हिसाब से सर देखा जाए तो सर पूरी इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन कांस्टेंट होनी चाहिए सर, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज क्यों आता है? ओके, या वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये मैंने बहुत ही बार सुना है क्वेश्चन, हमेशा ये क्वेश्चन आता है। सो जस्ट फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअली सोल मीन्स in animals also soul exist also in mosquito also, जो मच्छर होते हैं उनमें भी सोल एग्जिस्ट करता है, जो चींटियां होती हैं उनमें भी सोल एग्जिस्ट करता है। सो हम तो सिर्फ ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ह्यूमंस की पॉपुलेशन कभी बढ़ गई कभी घट गई। तो अगर आप टोटल काउंट करेंगे दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट मींस कांस्टेंट नहीं भी होता है एक टर्म्स में, दैट वी विल टेल कि जो कुछ सोल हैं, जो कुछ आत्माएं हैं, that they
come out of this cycle of birth and death. Some souls are able to come out of this cycle of birth and death, so वो count change होता है. But as just for normal understanding, हमारे लिए count करना इतना easy नहीं है कि soul कितनी exist कर रही है, because कितनी चींटियां एग्जिस्ट कर रही हैं, जितने टोटल ह्यूमंस हैं उससे ज्यादा चींटियां तो सिर्फ एक छोटे से शहर में होंगी. टोटल ह्यूमन से ज्यादा चींटियां तो एक छोटे से मच्छर, ये सब चीजें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट आल्सो इन दैट वे. ओके अभिषेक. यस सर, क्लियर हो गया. थैंक यू वेरी मच. या एनी अदर क्वेश्चन? सर हमने सुना आयुष पहले आप बोलिए, पहले आप बोल रहे थे, देन रतन. आपने बताया सोल का साइज वो बाल की टिप है उसको 10,000 बार डिवाइड कर दिया जाए. तो सर ये कैसे पता चला? मतलब स्क्रिप्चर्स में लिखा है, वेदास में. हाँ, बेस्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ वेदास. ओके सर. या नॉट बाय एनी एक्सपेरिमेंट, मैंने तो नहीं किया है this thing. Many things are based, हम कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट से हम दिखा सकते हैं, that we are trying to show, but there are certain things beyond the range of any experimentation and that we are trying to see from scriptures only. और scriptures में these things are mentioned and scriptures are having relevance, so वो हमने कल देखा ही था कि how we can have faith in scriptures. तो faith करके हम पहले तो हम देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम वेरीफाई भी कर पा रहे हैं, एंड फिर हम फॉलो करें चीजों को, जो भी स्क्रिप्चर्स कह रही हैं उसको फॉलो करने का कोशिश करें, और फिर देखें कि हमारी लाइफ में चेंज आ रहा है या नहीं. उसके बाद फिर हम कुछ डिसीजन लें. पहले इस्तेमाल करें, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, फिर विश्वास करें. तो पहले कुछ करके देखिए, जो भी स्क्रिप्चर्स कह रही हैं वो लाइफ में अपना के देखेंगे हम. मैंने अपना के देखा है, मैंने चैलेंज दिया है बच्चों को कि आप अपना के देखिए, और आपकी लाइफ में चेंज ना आए, आपको पॉजिटिव फील ना हो, आपको डिफरेंस फील ना हो, तो देन यू गिव अप, छोड़ दो. किसी ने नहीं कहा है पकड़ के रखने के लिए, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं कि जो अच्छे से फॉलो करेगा और वो कहेगा कि मुझे छोड़ना है. आई एम फॉलोइंग फ्रॉम सो मेनी इयर्स, 6-7 years from my BTech days, and I'm still following it. I give my time for Dhruva Club also because I feel कि ये बहुत important है, like that. Okay, now I think Ratan can ask the question. यस सर. सर हम कह रहे थे सर भगवान एक होते हैं. ओके. भगवान एक होते हैं, तो सर अलग अलग धर्म क्यों बनाए सर? हाँ, तो ये एक पूरा सेशन ही है हमारा, जो 6th सेशन है, वो इसी के ऊपर है. इफ गॉड इज वन, व्हाई सो मेनी रिलीजन, जो आपका क्वेश्चन है, एग्जैक्ट यही सेशन का भी नाम है. तो उसमें अच्छे से हम कर लेंगे डिस्कस. और सर कभी कभी लगता है सर कि कोई चीजें दिखती ऐसी दिखती है जैसे हम इसको पहले देख चुके हैं. सर इसका मतलब क्या होता है सर? ये मतलब उस लेवल पे, मतलब अगर हम जाएं तो बिकॉज वी माइट हैव एक्सपीरियंसेस, जो हमारे मन में एक्सपीरियंस रहते हैं कुछ चीजों के, लेकिन वी कैन नॉट से कि वो एक्सपीरियंस कब थे, इसी जन्म के हैं, पिछले जन्म के हैं, या फिर क्या है. सो दैट कैन बी देयर, बट वो हमारी थॉट होती है सर. मे बी थॉट एंड मे बी एक्सपीरियंसेस, मे बी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस समटाइम्स. और मन जो है, मन क्या करता है कि समटाइम्स कुछ एक्सपीरियंसेस को मिक्स कर देता है. मतलब स्पेशली जो ड्रीम्स आते हैं, सपने जो आते हैं, वो कुछ ऐसे ही होते हैं अजीब. जैसे मतलब सपने में आपको दिख सकता है कि एक गोल्डन एयरप्लेन है, ऐसा आपको दिख सकता है, क्योंकि आपने गोल्ड को देखा है और एयरप्लेन को देखा है, तो सपने में आपको गोल्डन एयरप्लेन दिख सकता है. मतलब इस तरह की चीजें हो जाती हैं, मतलब मिक्स हो जाती हैं कुछ भी चीजें सपनों में. तो माइंड में इस तरह से हो जाता है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, लाइक दैट. ओके सर. ओके सर क्या जो हमारा सोल होता है, तो जैसे सोल हमारे बॉडी में है, तो हमने जो जितने भी चीजें की है सर, क्या वो हमारा जो सोल होता है, हेलो सर, हेलो, हमारा जो सोल होता है, जैसे हमने जितनी भी अपनी लाइफ में चीजें की वो एक्सपीरियंस करता है. एक्सपीरियंस मतलब माइंड में स्टोर्ड होते हैं.
जैसे हमने बात किया था, माइंड इज द मेमोरी जहां पर सभी एक्सपीरियंस स्टोर्ड होते हैं, और जैसे शरीर चेंज होता है तो शरीर के साथ साथ माइंड भी जाता है। आपके जो पिछले जन्म में आपके पास माइंड था, वही इस जन्म में भी माइंड है आपके पास, माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो वो इस एक्सपीरियंस आपके पास पहले से स्टोर्ड है, लेकिन वो अभी कहीं गहराई में है, अभी वो इतने नए एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए वो बहुत सतह पर ऊपर नहीं है, दे आर डीप बिलो। तो अब कोई खोदेगा उसको तो वो पुराने एक्सपीरियंस भी आ जाएंगे, वो वापस निकल के भी आ सकते हैं कभी कभी, ऐसा होता है। स्पेशली व्हेन पीपल आर यंग अप टू 4-5 years, जब तक वो ज्यादा बोलते नहीं है, तो उनको पिछली लाइफ की कुछ छोटी मोटी चीजें याद आती रहती हैं। बच्चों को आपने देखा भी होगा, रोते रहते हैं कभी कभी, अचानक से रोने लगते हैं, अचानक से हंसने लगते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दे माइट रिमेम्बर सम प्रीवियस थिंग्स, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दैट डज नॉट मेक्स मच डिफरेंस इन आवर लाइफ, बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। व्हाट वी कैन डू इज, जो अभी हमारे पास अभी हम हैं लाइफ में, we have to make a decision whether we want to follow a responsible life, we want to take good decisions and we want to live happily. हम try तो करके देखें, that is the only request to all of us. सर जैसे कि एक होता है, भगवान कहते हैं जैसे हमने किसी एनिमल्स वगैरह को कष्ट पहुंचाते हैं तो वो गलत होता है सर। सर इस तरीके से देखा जाए तो सर हम वेजिटेबल्स ये सब वगैरह इन सबको भी तोड़ते वगैरह, सर उनको भी तो होता होगा ना सर पेन? हाँ बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। और इसी का आंसर जो है भगवान ने भगवत गीता में दिया है। तो भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि एक्चुअल में इस वर्ल्ड में हमें कुछ ना कुछ तो, हमारे लिए सबके लिए भोजन कुछ ना कुछ है। सो सबके लिए, लेकिन भोजन जो है वो तय कर दिया गया है कि आपको क्या भोजन खाना चाहिए, क्या अच्छा है आपके लिए। तो अगर हम वो करते हैं, जैसे शेर है, तो शेर को मना नहीं किया जाएगा कि आप जो है दूसरे एनिमल को मत खाइए, ऐसा जो है शेर को कहना गलत रहेगा। तो मैं जस्ट श्लोका सर्च कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, तो श्लोका मुझे मिल गया है। हाँ, सो भगवान ने सबके लिए बताया है कि क्या खाना होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो करेंगे, सो देन वी आर नॉट डूइंग एनी रॉन्ग थिंग। तो भगवान ने बताया मनुष्य के लिए क्या खाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदाहम भक्ति उपाहृतम अश्नामि प्रेतात्मना। तो भगवान कह रहे हैं, इफ वन offers me with love and devotion a leaf, flower, fruit or water, I will accept it. तो भगवान ने बेसिकली बताया कि वेजिटेरियन खाना वो एक्सेप्ट करते हैं और वेजिटेरियन खाना ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसलिए हम जो है वेजिटेरियन खाना खाते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, दैट कॉन्सेप्ट इज अबाउट कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस मीन्स एवरीवन इज हैविंग अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब डेवलपमेंट इन द कॉन्शियसनेस। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कॉन्शियसनेस जो है बहुत लो डेवलप्ड है, उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना जो है बहुत कम विकसित है, उसको संकुचित चेतना भी बोलते हैं। और जो एनिमल्स हैं उनकी चेतना जो है वो काफी डेवलप्ड होती है, ह्यूमन से थोड़ा कम होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कष्ट जो है, कष्ट अमाउंट ऑफ पेन जो है वो बहुत कम है, पहुंचता है कंपेयर टू द पेन विच कम्स टू एनिमल्स। तो इसीलिए भगवान ने ऐसा बताया है कि मनुष्यों के लिए ये फिजिबल है कि दे ईट वेजिटेबल्स। वो आपने फूड चेन भी पढ़ा होगा, ये हमारी साइंस में भी पढ़ाया जाता है कि जो उसके लिए खाना वो है, उसके लिए खाना वो है। तो ये भागवतम में बताया भी जाता है, जीवो जीवस्य जीवनम, द नेचर इज दैट इन दिस वर्ल्ड इट हैज बीन मेड इन सच अ वे कि हमें कोई एक व्यक्ति के लिए दूसरा जो है वो भोजन रहेगा। तो ऐसा तो होगा, बट ये भी इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। वो 5th सेशन में ये प्रॉब्लम भी सोल्व होगी कि कैसे इसको सोल्व करें। लेकिन यही है कि हमारे लिए स्पेसिफाइड खाना है कि हमें वेजिटेरियन खाना है, क्योंकि वो भगवान ने हमें बताया है और उसको खाने से हमें पाप या फिर हमारे लिए कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, हम गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे थोड़ा अर्पण करो,
तो खाने से पहले अगर हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान आपने मुझे दिया है, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हम याद कर रहे हैं तो वो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, या फिर भगवान के फोटो के सामने हम लेके जा रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं और फिर खुद ग्रहण कर रहे हैं। मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, तो भगवान फिर हम वो फूड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वेजिटेरियन फूड में थोड़ा बहुत हम कष्ट पहुंचा रहे हैं। सर हाँ बताइए। अगर हम लोग फल वगैरह खाएं तो प्लांट को भी नुकसान नहीं होगा अगर फल ही खाएं, और पेड़ भी ज्यादा लगाए जाएंगे। हाँ, फल खाएं तो दैट इज करेक्ट ओनली, बट या अगर जैसे कुछ में हमें काटना तो पड़ता है, कुछ कुछ में तो दैट इज देयर, बट लेकिन ये है क्योंकि ये स्पेसिफाइड फूड है, हमारा जो मनुष्य है उसके लिए स्पेसिफाइड फूड है, तो इसलिए उसमें खाने में कोई देयर इज नो थिंग एज पर भगवत गीता और एज पर स्क्रिप्चर्स, दैट इज करेक्ट ओनली। एंड इफ वी रिमेम्बर गॉड तो वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर हम भगवान को याद करके खाते हैं किसी भी चीज को कि आपकी ही कृपा से हमें मिल रहा है, सो दैट इज वेरी वेरी ग्रेट। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ बताइए। बिल्कुल सर, जैसे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है सर, जो बुरे व्यक्ति होते हैं सर उनको मरने के बाद सर यातनाएं दी जाती हैं यमलोक में कुछ सर, तो वो सब इसलिए होता है सर? Yeah, scripture says about all these things, and yeah, that is मतलब काइंड ऑफ सिंपल थिंग ओनली। जैसे इस लाइफ में भी यहाँ पे कोई गलत कार्य करता है जैसे, तो जेल में जाते हैं, पनिशमेंट मिलता है। तो सिमिलरली अगर कोई इस लाइफ में किसी को कष्ट पहुंचाया होगा, जैसे किसी ने 10 लोगों का मर्डर किया है, तो उनको थोड़ा बहुत कष्ट तो मतलब जितना उन लोगों ने दिया है, तो लाइक नेचर का ऐसा अरेंजमेंट है कि उनको थोड़ा बहुत कष्ट, जो मतलब थोड़ा बहुत इन द सेंस जो भी मिलना है वो मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। मतलब ये तो सिंपल है, मिलना है। मतलब आप भी देखेंगे तो नॉर्मल कॉमन सेंस में भी ऐसा होना ही चाहिए अगर अरेंजमेंट है ऐसा, लाइक दैट। क्या रहता है गरम तेल में चलता कुछ, दैट इज डिटेल्स ओनली। मतलब वो सब डिटेल्स हैं, वी विल नॉट गो टू दोस डिटेल्स, बट या स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, दैट इज देयर। बट जो डिटेल्स है उन पे हम बाद में जाएंगे, वी कैन गो देयर लेटर। बट सिंपल थिंग आप सोचिए कि अगर कुछ ने किसी को कष्ट पहुंचाया है तो उसको वो वापस नॉर्मल है, सिंपल है, इस वर्ल्ड में भी मिलता है। भाई कोई किसी ने किसी को चोरी की है, उसको पकड़ लेते हैं, उससे पिटाई करते हैं पुलिस वाले, तो होता है ना, सिंपल ऐसा ही होता है। तो यही है, इसी तरह से रूल है। सर जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं सर उनके बारे में आपका क्या कहना है, थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। हाँ, सो सिंपल थिंग है, इट इज नॉट गुड एज पर द स्क्रिप्चर्स। भगवान नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा करें, बिकॉज हम किसी दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर कोई अभी करते भी हैं, खाते हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन इजिली स्लोली गिव अप। अगर कोई खाते भी हैं, नो प्रॉब्लम। बट हाँ बताइए सर। एक पॉइंट और है, जो सर मीट होता है ना, तो जो हमारी आते होती है ना, वो मीट के हिसाब से बनी नहीं गई। या दैट इज करेक्ट। जो हमारा कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट इज मेड ओनली टू डाइजेस्ट वेजिटेरियन फूड। एंड आल्सो अवर टीथ, और जो हमारे दांत भी हैं वो भी उसी तरह से बने हैं कि वो वेजिटेरियन फूड को ही खा सकें। जो नॉन वेज, हाँ कार्निवोरस जो होते हैं, उनके दांत की सर जो इंटेस्टाइन होती है वो सर छोटी होती है, और अपनी सर बड़ी होती है, तो अपन का ज्यादा टाइम तक खाना सड़ेगा उसमें, तो वो डैमेज कर सकता है इंटेस्टाइन को सर। 72 घंटे तक सर पचता नहीं है। हाँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। दिस ऑल साइंटिफिक डिटेल्स व्हिच आई वाज गोइंग टू टेल, आयुष ने बता दिया। सो दैट इज हाउ इट इज देयर एक्चुअली। नहीं, बहुत ही अच्छा है, आपने बहुत अच्छा बताया। यू हैव ऑल द डिटेल्स, वेरी करेक्ट। इसी तरह से हम किसी को बता सकते हैं। अगर हमें कोई चीज बतानी है, वी शुड टेल साइंटिफिकली रादर देन विदाउट एनी कंक्लूजन, विदाउट एनी नॉलेज। ऐसा नहीं, हमें सब कुछ लॉजिकली और साइंटिफिकली प्रेजेंट करना चाहिए। सो सिंपल थिंग इज दैट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसके लिए नहीं बना है, हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है उससे, एंड हमारा शरीर का स्ट्रक्चर भी वैसा नहीं है। और स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना गलत है। वो हमारे लिए फूड डिस्क्राइब्ड नहीं है एज पर स्क्रिप्चर्स भगवत गीता। बट अगर कोई फॉलो करता है, नो प्रॉब्लम, इट इज लाइक दैट। इट इज वेरी कॉमन दीज डेज, बट वी कैन स्लोली ट्राई टू गिव इट अप, and it can happen, it is possible, there is no much big deal. Many people are there who might be doing, lekin after
following Bhagavad Gita, trying to do some meditation जो हम कल सीखने वाले हैं, then it is very easy. It becomes very easy. ठीक है? Don't worry Ayush. It is okay. Ayush Verma, not Ayush Agarwal Garg. Ayush Verma का question. Okay. सर Okay. Any other question? सर एनिमल्स को मारना अगर गलत है सर, Yes. तो सर वो जब वो सीता जी को वो रावण किडनैप करने आया था, लाइक दैट, या ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार सुना है। तो जो वो कर रहे थे, सो वी हैव टू टेक इट, मतलब वो खाने के लिए नहीं कर रहे थे। आप पहली बात तो सिंपल ये सोचिए, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वो किस लिए कर रहे थे? बिकॉज दैट डियर दे वांट टू टेक इट एज डेकोरेशन इन द होम आफ्टर गोइंग फ्रॉम फॉरेस्ट, like that. And also that was the rule for क्षत्रिय। जो क्षत्रिय होते हैं, जो राजा होते हैं, उनको सिखाया जाता है शिकार करना, because they have to kill people in the war। उनको जंग में युद्ध लड़ना है, उनको जो है कोमल हृदय का वो नहीं हो सकते कि उनको खून देखते ही पसीना आ जाए। हमारे जैसे लोगों का तो ऐसा हाल हो जाएगा कि कहीं खून वून देख लेंगे तो मतलब ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो राजा लोग थे, उनके लिए वो धर्म था। तो हम सब लोग राजा नहीं है, यहाँ पे कोई भी बैठा है वो यहाँ पे वैसा नहीं है, तो हम सब के किसी के लिए भी वो धर्म नहीं है। वहां पे जो राजा थे उनके लिए धर्म था शिकार करना, सो दैट दे कैन बी लिटिल स्ट्रॉन्ग हार्टेड। और इसलिए भी करते थे शेर वगैरह का शिकार, ताकि सब कुछ बैलेंस रहे पॉपुलेशन का। शेर और डियर का वो सब पूरा स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग होता था, पूरा जो भगवान जैसा चाहते थे वैसा होता था। लाइक दैट द अरेंजमेंट वाज देयर। Okay. Like nature loves symmetry. हाँ, like nature loves symmetry. हाँ, nature loves symmetry, और जो भगवान जैसा चाहते हैं वैसा उसके अकॉर्डिंग ही होता था, स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग चीजें ऐसा। Okay. Thank you sir. Yeah, thank you very much. बहुत ही अच्छा आप सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि जो भी मन में डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाना बहुत ही जरूरी है। अगर कुछ भी बचे हैं तो यू कैन ऑलवेज आस्क, और अगर अभी भी बच जाते हैं यू कैन पुट टू अजय, यू कैन हैव डिस्कशन लाइक दैट एनी टाइम। सर एक क्वेश्चन और था सर। ओके, अच्छा ठीक है, बताइए सर। जैसे होता है ना, लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें जो अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए। सर हमें क्या अच्छा लगता है हमें यही नहीं पता चल पा रहा सर, ये कैसे पता चले? ओके, या दैट इज अ बिग क्वेश्चन। सो at this point of time, because you have taken an admission into engineering, so it is suggested कि आप वहीं पर कुछ सर्च करें कि आपको क्या आपके लिए बेटर जॉब है, like that. और अदरवाइज यू कैन थिंक डीपली, यू कैन टॉक विद योर पेरेंट्स, और जो लोग आपको अच्छे से जानते हैं वो आप उनसे बात कर सकते हैं, और उससे पता चलेगा कि आपका क्या स्वभाव है और क्या अच्छा लगता है। अदरवाइज देन somehow it becomes very natural कि आप जो पढ़ रहे हैं बस वही करिए। लेकिन लाइफ सिर्फ ये नहीं है, एक्चुअली लाइफ में असली जो है हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें दूसरों की हेल्प करके, या फिर जो भी फील्ड में हम कर रहे हैं वहां पर एक्सेल करके, वहां पर हम कुछ अच्छा करें। when you become an engineer, you become a good engineer, you do your job responsibly, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। and along with that you help people develop good values। एक्चुअली इसका बहुत नीड है सोसाइटी में। असली नीड जो है वो इसी चीज का है कि लोग खुश नहीं है, और लोग खुश इसलिए नहीं है कि उनके पास चीजों की कमी है, पैसों की कमी है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में गवर्नमेंट सब कुछ तो फ्री देती है, जो गरीब लोग होते हैं उनको भी बहुत कुछ चीजें फ्री में मिल जाती हैं, तो चीजें तो लोगों तक पहुंच ही जा रही हैं। लेकिन कमी क्या है, लोगों के पास वैल्यूज नहीं है। तो इसलिए जिन लोगों के पास मनी भी है, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज दे डू रॉन्ग एक्टिविटीज, दे कमिट, दे ड्रिंक, दे मेक देयर हेल्थ वर्स, कुछ भी करते हैं मतलब। तो इसी तरह से ज्यादातर लोग परेशान हैं, ज्यादातर लोग इसी वजह से अपना समय दुखी हैं रादर देन अदर प्रॉब्लम्स। तो आप ऐसे करके हम कुछ लोगों को अगर हेल्प कर सकें
और अपनी लाइफ में भी ये भगवत गीता को फॉलो करें, तो आपको जो खुशी आप जो ढूंढ रहे हैं वो वहीं पे मिल जाएगी, अपनी लाइफ को रेस्पॉन्सिबली जीकर। सो इसी चीज की बहुत कमी है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, लेकिन आप डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने किसी भी अच्छे मित्र के साथ जो आपका सच में ही रियल फ्रेंड हो, जो आपके लिए अच्छा चाहता हो। पहले तो उस व्यक्ति को ढूंढना एक आज की लाइफ में एक बहुत बड़ा संघर्ष रहेगा, तो वो करिए और फिर आप डिस्कस करिए कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे नेचर के अनुकूल है, और वो अचीव करना कितना पॉसिबल है। मतलब हर एक चीज मतलब देखना पड़ेगा हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में कि मैं वो कर सकता हूँ या नहीं, उसके लिए भी हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम मूर्खता पूर्वक सोच लें कि ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। प्रैक्टिकल होके चीजें सोचना चाहिए कि क्या संभव है, किस तरह से किया जा सकता है। ओके ओके सर। सर हाँ बताइए सर, कैन यू हियर मी? हाँ, यस यस, आई कैन हियर। सर ध्रुवा क्लब इज based on सर spirituality. ध्रुवा क्लब इज बेस्ड ऑन मेकिंग गुड लीडर्स, जो आपने फर्स्ट ये प्रेजेंटेशन भी देखा होगा। सो ध्रुवा क्लब इज बेस्ड ऑन हेल्पिंग पीपल डेवलप गुड वैल्यूज, बिकमिंग गुड लीडर्स and helping other juniors like that and becoming a good leader in the society. सर मैंने इसका ओरिएंटेशन देखा था, इसलिए मुझे इसकी पूरी मतलब नॉलेज नहीं है। हम आगे मतलब हाँ, नो प्रॉब्लम। तो आपको अजय जो है वो हेल्प कर सकते हैं, ही कैन टेल द ब्रीफ बैकग्राउंड। सर से भी बात करी थी हमने, उनसे भी डिस्कशन किया था, लेकिन हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुए थे। आपने सर 4 इयर्स तक सर इधर ध्रुवा क्लब में रहे हो, तो सर आप और मतलब और ज्यादा एक्सपीरियंस है सर, इसलिए हमने यस या सो सिंपल थिंग इज दैट कि आज मैं आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूँ। आई एम एबल टू लर्न ऑल दीज प्रेजेंटेशन स्किल्स जो मुझे बहुत हेल्प करती हैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी। मुझे इंटरव्यूज में अच्छे से मैं आई कैन टॉक वेरी नाइसली, आई कैन स्पीक टू मैनी पीपल। All this is because of the personality development which is possible after becoming a part of Dhruva Club. Because आप लोग after you are part of Dhruva Club, you can do various activities. You can take अगले साल आप ये अच्छे से प्रेजेंटेशन आप सुनिए, अगले साल आप प्रेजेंटेशन देना भी तैयार शुरू कर सकते हैं। तो this is how, and you can learn various things. So this is how a leader develops. तो यही सब चीजें हम सीखते हैं, और स्पेशली वैल्यूज, क्योंकि हम जो कुछ फालतू का प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंटेशन तो लोग दे सकते हैं, लेकिन हम प्रेजेंटेशन भी उस चीज का दे रहे हैं जो लोगों की लाइफ में हेल्पफुल। सो दैट इज द होल थिंग जो हम रियली चाहते हैं, लाइक दैट। ओके सर, थैंक यू सर। या थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग, गुड नाइट, वी विल मीट टुमारो। और अच्छे से सब लोग रहिए, ध्यान रखिए, और प्लीज डू कम टुमारो। थैंक यू वेरी मच। अजय, अभिषेक, रतन, आयुष, अर्पण, विक्की, आयुष वर्मा, आकाश एंड विनीत, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू अजय। अच्छा ये वो वाला आपने। ओके, आई विल एंड द मीटिंग।